Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the recording for skills at the rate 100 where for 100 days we are bringing for you 100 different speakers from all over the country. The speaker is C. Vijay Agarwal, who is an Excel expert and also has been Microsoft MVP for continuous 4 years. The topic is Microsoft Excel Masterclass, and we have deep dived into some really amazing Microsoft formulas. So now, what are we waiting for? Let's go. Hello everyone, welcome to the 47th session of Skills at the Rate 100, where we are trying to bring for you 100 different speakers from all over the country. And today's topic is very special because 99.99% of us are using this tool every day, whether we are a banking, whether we are a corporate, whether we are just as the sir has told that whether you are Fortune 500 or whether you are a sole proprietor, you are going to use this application every day. And many applications came and gone, but Excel has from 40 years, I think, sir, from 40 years it is there. It has always upgraded itself. So the topic we all know very well, Microsoft 365 latest formulas. This is going to be a masterclass on that. And the speaker is an very special person, CA, CS, and having over 32 years of experience, Vijay Agarwal ji. Most important, sir, there are so many things to tell, but most important I will tell is that sir has been the most valued professional over 4 years continuously. There are only 100 MVPs in the world, and in fact sir has also been invited by Microsoft themselves at USA headquarter many times. And sir also has given trainings and engagement with Capgemini, Aircel, Jindal, Havels, etc. So sir has been, and there is no doubt about that topic, and there is no doubt about sir. It is going to be an absolutely amazing session. Sir, over to you. Thank you so much for accepting our invitation. Just 1 second, I will mute everyone and then only sir, I will unmute you. Just give me 1 second. Yes, sir, you can unmute yourself. Not yet, sir. It's not done. Please check, sir. Not yet. Yes, 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 sir. Now it's done. it's Okay, done. sir. Okay, great. So first of all, I am very thankful to like your group and like Lokesh ji, so as a host and your this academy, and really for giving me this opportunity. Mank, like, so he has taken my session, my course, like he has done. So he told me that okay, like we are like having a big group, so there like definitely whatever little bit knowledge I am having, so if I am going to share that, so those are going to be very helpful. So because for virtual session I am like always ready, so because you don't need to travel, so you can manage time and date also. So friends, like as my introduction was told that okay, I'm chartered accountant, company secretary, like so pure I'm a finance person. So more than like 22 years I was in job. So I did like in different like roles. So in finance division, MIS, but Excel was something that okay in every like all of my profiles like I loved. So first time I used start using Excel in 1998, and that was the first day like I fell into love for Excel. And then I started myself learning myself. At that time there was no web or like there is no internet. So whatever like I have learned, so there is no formal training for me. So everything like I learned myself during my work or like at my home. So because of my like passion, so a stage came like after 2010 that okay, I was solving so many questions on web, and I was not aware about MVP award. So I got this MVP award in 2014 first time, and at that particular year I was the only one in South Asia who got this award. Every year Microsoft gives this award around 100 people all over the world. So four times I got this award, and all these 4 years I was invited to Microsoft headquarters to attend a seminar or like some like very big celebration for 4 days. So that I was part of that. So it was a great experience. My visa also Microsoft has given for 10 years business visa, and so first time I visited US just because of my Excel skills.
And in 2016, I left my job and I started my practicing Excel only. So now I don't do Excel, CA practice or CS practice. I'm 100% practice is only and only Excel. So I take sessions for Institute of Chartered Accountants, Institute of Company Secretaries, and ICWA, and lot of like sessions I'm doing for corporates out of India also, particularly in UAE and Dubai. So I'm doing lot of clients and sessions. So I love having doing this Excel. So that's all about me. So today, friends, I'm going to share with you like my this Excel 365, the new functions, which like whatever change like Microsoft has given in last 4, 5 years, 6 years after this introduction of Excel 365, that was not done in last like before that like in 20 years. So nowadays, like we are having dynamic formulas. So that is the single cell formula. What is the dynamic formulas that you should avail? Single cell formula means there is no need to drag the formula. There is no need to like insert or delete something or copy the formula. Just single cell, depending on your requirement, your formula will automatically will expand or reduce. That's the beauty of these dynamic formulas. So most of the formulas nowadays, like we are having the dynamic formulas. So those are working like a macro coding. So now after this Excel 365, like I hardly use this macros. So I like doing lot of my second vertical is automation. So I provide my consulting like doing automation work for the big corporates. So like I made their work like around 5 days work reduced to 5 minutes, 10 minutes. That's the projects like I take and I do for the corporates. So let's see the files which I have shared and try to make session interactive by chat. And I want that, okay, from like Lokesh and Mayank, like both of you are going to be moderator and anybody else also like interested to being moderate the session. So you are welcome. So for a moderator, I would request that if you can open your camera and other like participants also, if you can open your camera, so I'll not feel alone. I'll feel that, okay, we are having the experience like a classroom experience. It's not like we are having the virtual session. So in case like you are comfortable, it's not the compulsory that we are going to have the like this camera open. But in between, you can also close sometimes like you are having some tea or some coffee. So that depends on you. Right, my friends. So let me share my file with you, friends. Yes, this is the file like which I have shared with you, my friends. So I hope my screen is visible Yes, sir. clearly. Very good. So in between, like I'll be asking the questions from the moderators, like whoever like opened the cameras. So in between, so on behalf of the participants, so you are going to give me the answers. So in case like if I'm going to ask the questions in between. Right, my friends. So Excel 365, before I'm going to for this particularly Excel 365 and AI, so I'll start with one traditional technique. So I'm not sure how many of you know this particular like technique. So AI was introduced in Excel long back. So it was not like after Excel 365 or after ChatGPT. So around 12 years back in 2013 version, Microsoft introduced AI, artificial intelligence. So there is a one technique, one like tool of Microsoft which was working as a AI, artificial intelligence. So if you are going to use that particular technique, so you can reduce your maybe one day work you can do in 1 second, 2 second, depending on the requirement. What like that can do. So some of you can tell me the name of that particular like thing which was introduced in 2013. And that is the classic example of AI, classic example, how AI is going to work. Flash fill. Flash fill, very good. So that is the correct answer, I'll say. So if you know, very good. But if you like people, so attendants, so who have heard it first time, so definitely they need a lot of practice, so lot of like knowledge they need to get for the Excel because 2013 functions we are not using.
and that can save your time a lot. So let's see how it's going to work. What is the classic example of artificial intelligence? So suppose without any formula, without any coding, just you give an instruction to Excel, and the same technique, same instruction, it will implement to whole your data, whether you are having 5 rows or 500,000 rows. सो जैसे कि आपका नाम है यहाँ पे, विजय अग्रवाल है, ए बच्चन है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि मेरे को इसमें से फर्स्ट नेम लेना है, आई नीड टू एक्सट्रैक्ट ओनली फर्स्ट नेम, अब आपको लगेगा लेफ्ट फॉर्मूला चाहिए मेरे को, या कितने करेक्टर देखने हैं मेरे को, किससे पहले लेना है, राइट करेक्टर कैसे लेना है। तो रियली आपको जब तक फॉर्मूला नहीं आएगा और थोड़ा सा आपको एडवांस एक्सेल नहीं आएगा, आप नहीं निकाल सकते। बट विदाउट इवन फर्स्ट डे इफ यू आर यूजिंग एक्सेल, तो एक्सेल को आप बोलिए, जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं, बच्चे को हम कोई चलना सिखाते हैं, तो एक उसको क्लू दीजिए। आपने क्या बोला इसको कि प्लीज, आपने यहाँ पे टाइप कर दिया विजय, आपने सिंपल विजय लिख दिया यहाँ पे, और विजय लिखने के बाद आप इसके नीचे जाइए और कहीं पे भी जस्ट यू गो देयर एंड फर्स्ट वेयर इट इज लाइंग, और इसकी आपकी मैजिक की बोलते हैं इसको, कि कहाँ पे है। ये है आपके रिबन के अंदर, ये जो रिबन है, अलग अलग रिबन है, वी आर हैविंग होम रिबन, वी आर हैविंग फॉर्मूलाज, सो डेटा रिबन इज देयर। इन डेटा रिबन देयर इज ए डेटा टूल्स, इन डेटा टूल्स इफ यू गो देयर, सो ऑन दिस फ्लैश फिल, व्हाट इज द शॉर्टकट की, क्या शॉर्टकट की है जी, बता सकते हो इसकी? जब आप इसको होवर करते हो अपने कर्सर को, तो इट इज शोइंग फ्लैश फिल, इसकी शॉर्टकट की क्या है? सर लास्ट टाइम मैं आंसर दे रहा हूँ कंट्रोल ही, क्योंकि मैं सक जाऊंगा। सो अदर्स प्लीज ट्राई, कंट्रोल हाँ ही हाँ, इज द नहीं, शॉर्टकट। मैं बाकी चाहूंगा जिसने नेक्स्ट। मेरा सेशन अटेंड किया हुआ है वो थोड़ा रुक के जवाब दें। पहले मैं चाहूंगा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जवाब दें, या चैट उसमें लिखें, और जो मेरे मॉडरेटर हैं वो चैट जीपीटी उसमें देख करके, लाइक चैट में से देख करके मेरे को बताएं कि उन्होंने आंसर दिया और ये यस सर, आंसर दिया। बहुत सारे चैट्स में आंसर है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई, तो आपको कंट्रोल ई को याद करना है। अब आप यहाँ पे गए, आपने विजय लिखी चुके हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे जा करके आपने क्या किया, इसके अंदर जा करके यहाँ पे कहीं पे भी गए और यहाँ पे कंट्रोल ई दबा दिया। जैसे ही दबाया, आप देखिए मैजिक हो गया, इसने सारे के सारे नाम के आगे केवल फर्स्ट नेम उठाया। अब इसकी ब्यूटी ये है कि इसके 5 नाम होते, या 5 लाख होते, 10 लाख होते, ये काम होता है 1 सेकंड का। अब जिसको पता है ये, उसके लिए 1 सेकंड का काम, जिसको नहीं पता है वो पूरा दिन लगा देगा, और फिर भी उसकी लाइक एक्यूरेसी नहीं आएगी। और सब उसके बाद अगर पता लगा नई फाइल आ गई, उसको फिर 1 दिन लगाना है। अगर लास्ट नेम निकालना है आपने, यहाँ पे अग्रवाल लिखा और कहीं पे भी गए, कंट्रोल ई किया, ये भी आ गया। आपको ईमेल आईडी बनानी है जैसे इसमें से, और आपने कहा कि मेरे को ईमेल आईडी बनानी है v agarwal@gmail.com या champexcel.com। मेरी जो ब्रांड है मेरा, वो चैम्प एक्सेल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी वेबसाइट है। तो champexcel.com, वी अग्रवाल मतलब वी इसका, अग्रवाल इसका, और मैंने इसको बोल दिया एंटर। अब इसके बाद कंट्रोल ई किया मैंने, तो इसने देखिए वी, इसने अभी तो इसने वी बच्चन, इसको ये लगा कि हर के आगे ई लगाना है। तो आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा किसी को थोड़ा समझा दो कि भाई मेरे को तो इसको आगे जो चाहिए था, एस और गोयल @चैम्प एक्सल, तो उसको ये कंफ्यूजन हुआ कि सबके आगे वी लगाना है। तो यहाँ पे जाके एस गोयल champexcel.com, जैसे मैंने एंटर किया, तो अब ये देखिए इसने अपने आप ठीक कर लिया। ए बच्चन कर दिया, कैटरीना, उसको 2 क्लू दे दिए मैंने, तो उसको कंफ्यूजन नहीं हुआ और उसने ठीक कर दिया उसको। तो ये मेरे को ईमेल आईडी बना दिया। ईमेल आईडी में से मेरे को वेब उसका निकालना है कि वेबसाइट कौन सी है, जीमेल की है, हॉटमेल की है, चैम्प एक्सेल की है, किसकी है। तो आप इसमें से निकाल भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारे को केवल इसमें से करना है, आप रिवर्स भी कर सकते हो। तो एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया। लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल। वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर लाइक वर्ड्स, इन दीज वर्ड्स वी आर हैविंग, क्या है हमारे पास कि नंबर भी है और उसमें नाम भी है, लेकिन कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई कोमा नहीं है, सारा का सारा एक खिचड़ी बनी हुई है, मतलब पूरा जुड़ा हुआ है। अब अगर आपको किसी ने टास्क दे दिया इसमें से नंबर को अलग कर दो, अब एक्सेल में कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है कि आप उसमें से नंबर को अलग करो। उसके लिए आपको माइंड में आएगा, अरे हो सकता है सर आप ये कहोगे क्या, टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम, लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम को काम करने के लिए क्या चाहिए, क्या कंडीशन है? हाँ जी, कोई बताएगा? टेक्स्ट टू कॉलम को काम करने के लिए क्या कंडीशन है? तो जिन्होंने कैमरा खोल रखा है, तो वो उसमें से अगर कोई बताना चाहें, सरोजनी, पराशम, सुप्रिया, प्रदीप जी, क्या फॉर्मूला है कि अगर मेरे को टेक्स्ट टू कॉलम, अगर मेरे को स्प्लिट करना है डाटा को, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए?
चैट्स में है सर आंसर, डिलिमीटर चाहिए। डिलीमीटर चाहिए। डिलीमीटर किसको बोलते हैं? तो डिलीमीटर बोलते हैं कि कोमा हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, कोई स्पेस हो, या कोई ना कोई ऐसी चीज हो, तभी मैं कर सकता हूं। या फिर मेरा उसका, जैसे पैन नंबर होते हैं कि मेरे को हर 4 कैरेक्टर के बाद, 5 कैरेक्टर के बाद मेरे पास डिजिटल नंबर आएगा, तो मैं उसको अलग कर सकता हूं। बट इसमें तो ऐसी चीज नहीं है। अब इसको अगर करने के लिए ऐसा कोई डेटा हो, आपको पूरा का पूरा 1 दिन 2 दिन, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम, आपका लग जाएगा। और फिर भी यू आर नॉट गोइंग टू बी 100% श्योर कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि अगर बॉस ने पूछ लिया, मैनेजर ने पूछ लिया कि आर यू श्योर सब ठीक हो गया, आप यही बोलोगे हाँ सर, लग भाई कोशिश तो की है, एक आध गलती तो हो ही सकती है, राइट? तो बट इसके लिए अगर आपने यहां पे करना है, जस्ट यू गिव 1 क्लू, 12, गो देयर, कंट्रोल ई, और ये देखिए आपके नंबर को इसने 1 सेकंड के अंदर एक्सट्रैक्ट कर दिया। जितना मर्जी डाटा होता, आपको इसमें से लिखना है कि अच्छा मेरे को ऐसे करना है, कि यहां से आपने बोला कि मेरे को करना है बाई और अंडरस्कोर हेलो अंडरस्कोर 12 अंडरस्कोर इंडिया, समथिंग लाइक आई वॉन्ट लाइक दिस। तो आपने ये किया, कंट्रोल ई किया, तो ये देखिए इसने क्या किया, आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। तो ये 2013 में आ गया था। उस टाइम तो कोई चैट जीपीटी कहीं पे नहीं था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ये फंक्शन तब से काम कर रहा है, राइट? बहुत कुछ है इसमें नंबर्स में, लाइक मे बी वी कैन हैव 2 आवर सेशन ओनली ऑन दिस फ्लैश व्हील, राइट? तो इतना कुछ इसके अंदर है। मैं केवल आपको क्लू दे रहा हूं कि जैसे आपके पास यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सपना बहल अमर गुप्ता, आपने यहाँ पे डाला कि मेरे को ऐसे चाहिए बहल सपना, आपको लास्ट नेम और फर्स्ट नेम में कन्वर्ट करना है। सो जस्ट यू पुट 1 क्लू, बहल सपना, और यहाँ पे जाकर के यू पुट कंट्रोल ई। ये देखिए इमीडिएटली यू आर गोइंग टू गेट लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। अब आप इसको देख करके आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन है, इसने सही कर दिया क्या? यस मयंक जी, आपको क्या लगता है, इसने सही किया या कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में? नहीं नहीं सर। क्या ठीक हो गया सही या तो नहीं। एनीबडी एल्स? ये आप देखिए इसमें जो नाम था इसने गुप्ता अमर कर दिया, कैफ कैटरीना कर दिया, गांधी सोनिया कर दिया, ये सब कुछ ठीक हो गया या कुछ थोड़ा सा कहीं लग रहा है कुछ हल्की सी कमी है इसमें? चैट्स में है सर आंसर, तीन तीन नेम जिसमें है, या मिडिल नेम वाला गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो आप जो चैट में आए ना वो आप थोड़ा बता, बोल के बताना, क्योंकि थोड़ा स्पीड हो जाएगी हाँ। हमारी। तो जैसे आप इसमें मिडिल नेम नहीं आया, अब आप कहोगे अरे सर इसमें तो 2 वर्ड होंगे तब तो काम करेगा, बट हमारे पास तो 3 नेम है, योगी राज आदित्यनाथ, राज खा गया ये, दीपक कुमार का कुमार चला गया, नरेंद्र डी मोदी का डी नहीं आ रहा। तो क्या करें इसका, इसका सॉल्यूशन है क्या कोई? तो मैं आपसे पूछूंगा वेयर यू वांट द मिडल नेम। हमने जो क्लू दिया एक्सेल को, वो दिया फर्स्ट, कि हमारे पास बहल सपना 2 ही नाम थे। तो एक्सेल थॉट कि फ्लैशफिल थॉट कि आपको लास्ट नेम चाहिए और फर्स्ट नेम चाहिए, तो अकॉर्डिंगली उसने काम किया, बट स्टिल इसकी जो इंटेलिजेंस है वो काम कर रही है। अब आप बताइए आपको कहाँ चाहिए, आपको जो मिडल नेम है वो स्टार्टिंग में चाहिए, मिडल में चाहिए, लास्ट में चाहिए, कहाँ पे चाहिए बताइए? यस, एनीबडी? हाँ जी बताइए कहाँ पे देना है हमारे को? मिडिल। सर मिडिल, मिडल मिडिल में, में फर्स्ट में चाहिए। मिडल में चाहिए आपको। तो मिडल में आप कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे ब्रिजवासी दीपक पे गए और यहाँ पे जाकर के आपने F2 किया, F2 का या डबल क्लिक कि मेरे को इसको एडिट करना है, तो अब आपको कुमार चाहिए मिडल में, राइट? कि मेरे को ब्रिजवासी कुमार दीपक चाहिए, अगर आपको चाहिए दीपक कुमार दैट ऑल्सो पॉसिबल, तो आपने इसको लिख दिया कुमार। अभी मैंने जस्ट एडिट किया है, अभी एंटर नहीं किया, और अब जाकर के मैं जैसे एंटर करूंगा यू विल सी द मैजिक। जैसे मैंने एंटर किया, अब ये देखिए ये तो ठीक हुआ ही हुआ, साथ साथ जितने भी मेरे 3 नाम थे, वर्ड थे, वो सारे के सारे ठीक हो गए इसके अंदर। ये फाइल मैंने आपको दी हुई है, आप इसकी जब प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे इसके अंदर कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो ऐसे आपको अपने रियल डाटा पे काम करना है। सम टाइम मे बी इट विल नॉट वर्क, वो जब आप अपना काम करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं डाटा की प्रॉब्लम है, दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग। अब जैसे इसमें आपके पास 4 कॉलम है, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए ऑल एग्जाम्पल्स वर सिंगल कॉलम एग्जाम्पल, बट हेयर वी आर हैविंग 4 कॉलम्स, देर मे बी 10 कॉलम्स, 20 कॉलम्स। नाउ यू वॉन्ट टू मेक ए सेंटेंस फ्रॉम दीज, वट यू वॉन्ट टू मेक, आपने कहा we purchased 15 laptops in Jan from Vijay in दुबई। मैंने
ये इसको एक सेंटेंस बना दिया। अब मैंने इसमें परचेज तो कहीं पे है ही नहीं, इसमें तो लैपटॉप्स तो है लैपटॉप्स तो है ही नहीं, इसमें मैंने जनवरी बस ऐसे डाल के ये कर दिया कुछ भी, और जैसे मैंने एंटर किया तो ऑब्वियसली ये तो आ ही जाएगा। बट मेरे को चाहिए सेम पैटर्न, आई वॉन्ट टू फॉलो एवरीवेयर। अगेन इसकी मैं तो चार ही लाइन पे करके दिखा रहा हूं, बट इसके लिए चार हो, भाई जैसे सम का फॉर्मूला लगाना है, तो एक्सेल के लिए आपको 4 लाइनों का सम करना है कि 4 लाख लाइनों का सम करना है, एक्सेल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंट्रोल ई दबाइए, जैसे ही करेंगे हो गया काम आपका। आप बोलो इसमें कहाँ कोई फॉर्मूला कोई कोडिंग कुछ नहीं करना, सब कुछ एक्सेल कर रहा है बैकग्राउंड में। और ये 12, अब तो 26 आने वाला है, 13 साल से ये फीचर चल रहा है हमारे पास। राइट, आपके पास जीएसटी नंबर है, स्टेट कोड निकालना है आपने, यहाँ पे गए, एपेस्ट्रोफ दिया आपने 02, और जाकर के कंट्रोल ई किया, स्टेट कोड आ गए। पैन नंबर निकालना है, पैन नंबर निकाल लिया। कितना इजीली आपको काम देगा, ये सब काम करके दे रहा है ये। तो आप सोचिए जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसका जो फीचर है 13 साल पुराना, वो जो इतना कुछ कर सकता है, तो आज की डेट में जो को पायलट आया है, चैट जीपीटी आया है, उसने तो क्या कर दिया, डायनामिक 365 फॉर्मूलाज, वो क्या कर सकते हैं। तो अब तो मैं जो ऑटोमेशन करता हूं उसमें समझो कि 99%, 98% टाइम बच जाता है। मैं गारंटी के साथ वो प्रोजेक्ट लेता हूं कि अगर आपका 5 दिन का काम 5 मिनट पे आ गया, 10 मिनट पे आ गया, तो आप पेमेंट देना, अदरवाइज आप पेमेंट भी मत देना। मतलब इतना कुछ पॉसिबल है एक्सेल के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ फ्लैश फिल के, जो कि कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है। जैसे कि आपके पास ये डेटा है, अब आपको इसमें से ब्रैकेट में ये जो लास्ट में दे रखा है, फिनांस एंड ट्रेजरी का एफटी निकालना है, मैनेजमेंट निकालना है, चेंज सीएचजी एमजीएमटी निकालना है। तो आपने क्या किया, एफटी डाल दिया यहाँ पे। अब इसके बाद आपको लगा यार कंट्रोल ई, ये तो बड़ा इजी है, कंट्रोल ई दबा दिया। अब की बार क्या किया इसने, एमजीएमटी ना देके एम दे दिया। एक्सेल कंफ्यूज हो गया, उसका जो ये जो फ्लैश फील है वो कंफ्यूज हो गया। क्यों हो गया, उसको लगा कि ये फिनांस ट्रेजरी का टी, ये मेरे को देना है कि लास्ट वाला देना है, तो उसको लगा कि ये चाहिए, तो उसने जो ये कैपिटल लेटर थे अपने भाई माइंड के बेस पे उसने इसको दे दिया। बट आपको लगता है ये ठीक नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे को उसको 2 क्लू दे देने चाहिए, 3 क्लू दे देने चाहिए, सो दैट कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं यहां पे जाऊं और इसको एम की जगह पे एमजीएमटी कर दूं। जैसे मैं ये करूंगा आप देखना नीचे ये जो सीएमसी है, एसएमएस है, क्या होगा, जैसे मैंने एंटर किया ये सारे ठीक हो गया जी। और या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही आपको लगता है कि ये ठीक से काम नहीं करेगा, तो एफटी दे दो, एमजीएमटी दे दो। अभी यहां पे कंफ्यूजन था उसको, बट जैसे उसने इसको देखा उसका कंफ्यूजन दूर हो गया एक्सेल का। अब उसको लग रहा है अरे मेरे को तो लास्ट वाला ही लेना है। राइट, अब यहां पे गए, कंट्रोल ई दबाया, ये हो गया। तो जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे, हमने कोई पहले कंपटीशन में, तो रीजनिंग क्या होती थी, 2 या 3 आपको कोई नंबर्स दिए, कोई आपको लाइक क्लू दिए, उसके बेस पे आपको चौथा करेक्टर फाइव, चौथा या पांचवा आंसर बनाना होता था। सेम वे ये भी आपको सही से काम कर गया। राइट, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। फाइल मैंने दे दी, जैसे एक्सट्रैक्ट ओनली नंबर्स। अब इसमें से आपको बोल दे कोई इंडिया का नंबर +91 चाहिए, और स्पेस ये नहीं चाहिए मेरे को, स्पेस ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, ऐसा अगर कोई डाटा आ जाए। अब भाई सुप्रिया जी हैं जैसे, अब ये प्रैक्टिस कर रही हैं सपोज करो, और 15 साल से प्रैक्टिस है, 10 साल से प्रैक्टिस है। अब इनका कोई क्लाइंट है, काफी पुराना क्लाइंट है, अच्छे वो दे रहा है बिजनेस, और उसके पास कोई फाइल आ गई, और उसने कहा कि मेरे पास ये 50,000 नाम है, और ये सुप्रिया जी, ये मेरे को शाम तक मेरे को इसको ये फोन नंबर बना के दे दीजिए। अब सुप्रिया कहेगी अरे नहीं नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसमें तो 2 दिन लग जाएंगे, इसमें तो लड़के को बिठाना पड़ेगा। अब उसके पास में पता लगा बैंक ने अपना ऑफिस बना लिया। अब उनका ऑफिस, उसने 1 साल पहले ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, नया नया यंग सीए, उसने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की हुई है। अब वो बंदा जो उनका क्लाइंट था सुप्रिया का, वो वहां से बड़ा डिसपॉइंट होके जा रहा है। अब जाते जाते उसी बिल्डिंग में से बैंक ने पहचान लिया, अरे ये तो यार सेठ जी हैं, इतना बड़ा काम देते हैं। तो उन्होंने भी जा करके उसको बोल दिया कि अरे सर, नमस्ते नमस्ते सर, आओ ना चाय लो ना, ये वो। अब उन्होंने सर भाई दाना करते हुए आ गए। तो बोले अरे किस लिए आए थे सर, अरे कुछ काम था मेरे को, और बस ये था कोई डेटा मेरे को बड़ा वही सबमिट करना था, लेकिन हो नहीं पा रहा, मेरे को आज ही उसकी लास्ट डेट है, कोई टेंडर में मेरे को ये देना है। उसने कहा कि अच्छा दिखाओ दिखाओ क्या है। उसने कहा बस इसमें से ये हटाना है, -=20 +91 लगा के, और ये फोन नंबर्स को ठीक करना है।
और वो मेरे जो सीए साहब है सुप्रिया, भाई काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो तो जो है ना कह रही है 2 दिन लग जाएंगे, तो मेरा काम मैं सोच रहा हूँ टेंडर छोड़ ही दूं। तो इतनी देर में उसने, बैंक ने चाय मंगवाई उनके लिए, उसने कहा एक बार दो तो फाइल मेरे को। अब उसने तो ट्रेनिंग अटेंड कर रखी थी, उसने जा करके 9820610140 यहाँ पे जा करके ये लगाया, और यहाँ पे कंट्रोल ई कर दिया। फिर एकदम से याद आया, अरे अरे 91 भी तो लगाना था मेरे को, तो यहाँ पे जा करके +91 डाल दिया इसने, और यहाँ पे 9820610140 ये किया इसने। और इसको करने के बाद कंट्रोल ई। अब ये देखिए पूरा का पूरा डेटा, जितनी देर में चाय खत्म हुई, उनको उनकी पेन ड्राइव में उनको मेल करके, बोले अरे सर वो मैंने कर दिया था थोड़ा, अब आप ये देखो। बोले अरे कर दिया आपने? आप सोच के देखो उसका सरप्राइज का ठिकाना नहीं। फिर वो कह रहा अच्छा पैसे, अरे सर 2 मिनट के काम के लिए पैसे लेंगे क्या आपसे? अब बताओ वो सुप्रिया का क्लाइंट होगा कि बैंक का क्लाइंट होगा? क्यों जी लोकेश जी, आप बताओ जी। बहुत बहुत बढ़िया सर। तो अब बढ़िया आपको बढ़िया सर। लाइक टेक्नोलॉजी का अगर यूज करोगे, आप उसका प्रैक्टिकली यूज करोगे, तो मे बी वो उस टाइम क्लाइंट हो नहीं हो एक दिन में, लेकिन कम से कम अगली बार जब भी कोई काम होगा, वो एक बार बैंक को याद तो करेगा कि यार एक बार बैंक से भी पूछ लूं। ठीक है वो काम चलो 15 साल पुरानी भाई है, भाई कॉन्फिडेंशियल उसके पास सारा कुछ, भाई सेठ जी का जो भी है वो सारी कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो हो सकता है वो उसको काम भाई एकदम से ना रोके। बट एक बार सोचेगा तो सही ना, यार मैम को मैं तो सोच रहा था बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो तो काम ही नहीं किया उसने। अंडरस्टूड? तो इस टाइप से आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है एक्सेल 365, नए फंक्शंस जो आए हैं वो कैसे काम करते हैं। उसके लिए आपको लाइक देर इज नो नीड कि आपको इसके लिए कहीं पे भी फॉर्मूले को ड्रैग नहीं करना है। सिंगल सेल में फॉर्मूला है, वो अपने आप से काम करेगा। जैसे आपका कोई डेटा है कहीं से आपने उसको लेना है, जैसे ये डेटा है मेरे को, और मेरे को इस डेटा को लेके सपोज करो पहले होता था कि मैं इसको ऐसे करके इक्वल टू करूं, तो एरर आ जाएगी। आप पुराने वर्जन में जा करके देखो, A2 = B13 करके देखोगे तो आपको एरर आ जाएगी। लेकिन एक्सेल 365 में अगर आपने ये किया और जैसे एंटर किया, तो देखिए डेटा एज इट इज उसने लेके आ गया। लेकिन अब अगर आपको ये पूरा डेटा आया और इसमें से बीच में से आपने इसको डिलीट कर दिया, अभी तो कितनी लाइन आई, सारी लाइन आ गई, लेकिन जा करके आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो जैसे यहाँ पे डिलीट किया, यहाँ का डाटा भी डिलीट हो गया। आपको कोई ड्रैग थोड़ी किया आपने, कोई एरर थोड़ी आ गई, रेफरेंस की एरर थोड़ी आ गई, सब कुछ। और अगर आपने इसके अंदर जा करके बीच में कोई इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे गया और एक लाइन इंसर्ट कर दी, और मैंने यहाँ पे डाल दिया ये कुछ भी, और चैम्प एक्सेल, तो ये देखिए चैप एक्सेल रियल टाइम पे, मतलब जो भी मैं कर रहा हूं, और फॉर्मूला क्या है, =A2 to B7, मतलब रेफरेंस दे रहा हूं। तो पहले जो फॉर्मूला चलता था वो सिंगल सेल का चलता था, कि मैं A2 तो कर सकता था, लेकिन =A2 से लेके B7 तक नहीं कर सकता। आप करके देख लो पुराने वर्जन में किसी में भी चले जाओ, आप 2016 में चले जाओ, और उससे पहले के जो भी वर्जन है एक्सेल 365 के अलावा, आजकल 2021 में, और उसमें कुछ हो भी गए हैं लेकिन सारे फॉर्मूले नहीं आए उसमें। तो ये है उसका एक्सेल 365। इसी तरह से ये फॉर्मूले पे भी काम करेगा आपका। तो फॉर्मूले पे कैसे काम करेगा, लेट्स सी। मेरे पास है सीक्वेंस। अब जैसे किसी ने बोला कि मेरे को सीक्वेंस डालनी है जी इसके अंदर, कि ये मेरे जो टॉपिक्स हैं, मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं जब भी नाम डालूं अपने आप से मेरी सीक्वेंस बन जाए, और अगर नाम डिलीट करूं तो सीक्वेंस गायब हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं फॉर्मूले को ड्रैग नहीं करूंगा, कॉपी नहीं करूंगा, बस एक बार जो मैंने फॉर्मूला डाल दिया उस पे काम करेगा। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने फॉर्मूला दे दिया, और उस फॉर्मूले का नाम दे दिया सीक्वेंस, नाम ही सीक्वेंस दे दिया। अब आपको डालनी है कितने नंबर, कि भाई किसी ने बोला 10,000, तो 10,000 डालने हैं। पता लगा जी पहले क्या होता था कि अपने जो परशुराम जी हैं, अब उनको बोला कि 1 से लेके 100 तक नंबर डाल दो, वो क्या करते थे, एक, फिर क्या करते थे, दो, और दो डाल के फिर यहां से ड्रैग करते थे ऐसे धीरे धीरे। और जब ड्रैग करते थे एकदम स्पीड बढ़ जाती थी, जब तक वो पहुंचे 144 पे आ गए, 144, फिर क्या करते थे ऊपर, फिर कम हो गए, फिर ऐसे। तो बेचारे परेशान होकर के लास्ट में नजदीक पहुंच के मैनुअल कर देते थे, और सोचते थे चल हाथ से लिख लेता हूँ यार क्या फर्क पड़ता है, ऐसे काम करते थे। अब उसके बाद बॉस ने बोल दिया नहीं नहीं मेरे को 100 तक नहीं चाहिए, मेरे को तो 1,000 तक चाहिए, मेरे को तो 50 तक चाहिए, मेरे को ये नाम हटाना है। सारा कुछ मैनुअल। अब आपको क्या करना है, कुछ मैनुअल नहीं करना है,
आपने क्या बोलना है एक्सेल को कि भाई आप काम करके दो मेरे को। एक्सेल 365 आपने बोला फॉर्मूला का नाम सीक्वेंस, कितनी रो डालनी है, आपने कहा 10। रेफरेंस दे दिया मैंने 10, एंटर मारा तो कितनी हो गई 10। मैंने कहा 5, 5 ही आ गई। मैंने कहा 50,000, जब तक मैं 50,000 टाइप ड्रैग की जरूरत ही नहीं, मैं पहुंचूंगा। आ भी चुका है 50,000 तक, पूरे के पूरे नंबर, कोई गलती नहीं, कोई बीच में आपको मिस्टेक होने का मतलब ही नहीं है। तो आप कितने इजीली आप कर सकते हो फॉर्मूले को। यू गॉट माय पॉइंट, कितना इजी हो रहा है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा अच्छा है, बट ये तो नीचे जा रहा है, मेरे को तो राइट में लेके जाना है, ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब ये जो सीक्वेंस दिया C6, कोमा किया मैंने यहाँ पे, अब ये बोल रहा है रोज या कॉलम्स, मैंने कहा 3 कॉलम तक चाहिए मेरे को, 5 रोज 3 कॉलम। अब ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चला गया। आपने बोला नहीं केवल एक ही रो चाहिए, इसको एक कर दो। ये हो गया जी 1 से 3, 300 तक करना है तो यहाँ पे 300 हो जाएगा जैसे आप जाओगे। अब मैंने जो फॉर्मूला दिया है ऐसा थोड़ी किया कि मैंने कॉपी किया ड्रैग किया, मेरा फॉर्मूला तो इसी सेल में है, बट लॉजिक के बेस पे काम कर रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। अब आप कहोगे सर ये तो एक से स्टार्ट कर रहा है, मेरे को एक से नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए सर, क्या ये पॉसिबल है कि ये मेरा जो काम करे वो 10,000 से स्टार्ट हो जाए? कोई बात नहीं, बाय डिफॉल्ट एक्सेल बोलता है कि एक से स्टार्ट होगा, लेकिन आपकी चॉइस है आपको जिस नंबर से स्टार्ट करना है। अब आपने 10,000 दे दिया तो 10,000 से हो गया। अब आप प्ले कर सकते हो, 10,000 से करना है, 100 से करना है, 2 कॉलम करने हैं, 8 रो करनी है, तो देखिए कितना इजी हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें तो जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक एक का गैप आ रहा है, 1 1 का गैप आ रहा है, 100 100, मेरे को चाहिए 5 का गैप। इज इट पॉसिबल? यस। अब आप इसमें गए चौथी आर्ग्यूमेंट, तो ये 100 दिया मैंने, तो ये 100 का गैप आ गया, आपको 5 का गैप करना है, 5 का गैप हो गया। आपको -5 का करना है, -5 का हो गया। तो ये आपका पूरी की पूरी सीक्वेंस बना दी इसने, सिंगल सेल फॉर्मूला। जब से एक्सेल 365 आया है तब से फॉर्मूला चल रहा है। और अभी तो मैं ये सिंगल आपको ये बता रहा हूँ कि नमक क्या होता है, मिर्च क्या होती है, पनीर क्या होता है, और आपका जो है टमाटर क्या होता है। जब बाद में डिश बनाएंगे इसकी अलग अलग, तब तो आपको लगेगा, वो जो मैं टाइम बताता हूँ कि 99% टाइम बचता है, 98%, मतलब गारंटी के साथ। जैसे होता है कोई आदमी स्कूटर ठीक करने के लिए गया, पंखा, तो वो कहेगा जी पंखे को ठीक करने में 500 रुपये लगेंगे। आप 500 रुपये तब दोगे ना जब वो ठीक हो जाएगा, जब उसकी आवाज बंद हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। सेम चीज आई फॉलो इन माई प्रोफेशन, कि मैं आपको ऑटोमेशन करके दूंगा, अगर आपका टाइम बचेगा जितना मैंने प्रोमिस किया है तो आपकी लाइबिलिटी होगी, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये आपका सीक्वेंस का फॉर्मूला हो गया। अब इसी सीक्वेंस का फॉर्मूला आप यहां पे भी यूज कर सकते हो अपने टॉपिक्स की लिस्ट में, कि मेरे को यहां पे बनाना है तो क्या करना चाहिए। अब उसके लिए क्या है, आपको थोड़ा ट्रेडिशनल फॉर्मूले भी आने चाहिए, कि मेरे को ये कैसे पता लगे कि यहां से यहां तक कितने नंबर है। अब अगर ये पता लग गए तब तो मेरे को पता है 12। अब मैं यहाँ पे 12 तो डाल सकता हूँ, इक्वल टू सीक्वेंस, और मैंने कहा कि यहाँ पे जो भी नंबर मैं दूं वो आ जाए। तो अभी तो मैंने कुछ नहीं दिया और मैं यहाँ पे 12 दे दूंगा, तब तो आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने इसमें से कोई टॉपिक कम किया तो ये तो 12 पे ही चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 12 दे रखा। इसको कैसे पता लगे ये 12 है, 11 है, या 250 है? उसके लिए क्या करना है, मेरे को एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, अगर मेरे को इसको काउंट करना है कि मेरे नंबर ऑफ यहां से यहां तक कितने सेल्स हैं जिनमें ये जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है, कौन सा फॉर्मूला था उसके लिए? कोई बता सकता है चैट में? टेट्स में बता दीजिए वरना मैं बता दूंगा। काउंट इफ लिखा है किसी ने। काउंट इफ तो रॉन्ग फॉर्मूला है। काउंट ए है एक्चुअली। काउंट ए काउंटा बोलते हैं, काउंट ऑल, ए का मतलब ऑल, और काउंट करता है केवल नंबर्स को काउंट। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है काउंट से हो जाएगा। काउंट जो है वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, वो केवल नंबर्स को काउंट करता है। तो यहां पे मैंने क्या लगाया कि काउंटा। अब आप कहोगे जी काउंटा किया तो काउंटा मैंने, अगर सपोज करो रेंज ये दी, इसकी जगह पे मैंने जो ये इक्वल टू काउंटा लिखना है मेरे को, आगे इक्वल टू काउंटा, और अब मैंने रेंज दे दी यहाँ पे। अब अगर मैंने रेंज ये दी तो यहां तक करेगा, मेरे को कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। 12 की जगह मैंने रेंज दे दी 1200 या 1,20,000, और एंटर मार दिया। अब ये 11 हो गया। अब मैं इसमें से डिलीट करूं या इसमें मैं कुछ नए नाम डाल लूं इसमें? ये डाल दिया मैंने। ये देखो जैसे जैसे मैं डालूंगा ये अपने आप से मेरी सीक्वेंस बनती चली जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल यूज हो गया कि मेरे पास कोई डेटा है और ऑटोमेटिकली वो नंबर्स मेरे को दे दे, वहां पे इंडेक्स बना दे उसकी।
तो इस टाइप से आप इसको प्रैक्टिकली यूज कर कर पाएंगे। जब मैं आपको एक कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा, एक एक चीज बना के फिर डिश बनाऊंगा, एक दिखाऊंगा मैं आपको, तो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो ये सीक्वेंस का आपने यूज देखा। अब चलते हैं अगला फार्मूला, यूनिक फॉर्मूला। ये कैसे काम करेगा? पहले एक मेरे पास डेटा होता था। सपोज करो मेरे पास कोई पुराना कोई डेटा है मेरे पास, और उस डेटा में से मेरे को क्या करना है जी, यहाँ पे इसमें से गया मैं, और मेरे पास जो डेटा है, बहुत सारे नाम है मेरे पास, और उन नाम में से मेरे को क्या करना है जी, मैं कोई डेटा लेता हूं, एक मिनट। हाँ, जैसे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है। अब इन प्रोडक्ट्स में से मेरे को ये देखना है कि हाउ मैनी प्रोडक्ट्स माय कंपनी इज डीलिंग विद, कि मेरे कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती है। कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे ट्रेडिशनल, एनीबडी? अगर मेरे को इस प्रोडक्ट का ये देखना है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वी आर हैविंग और क्या क्या नाम है, उसकी मेरे को एक लिस्ट चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए उसका। तो उसको निकालने के लिए क्या करते थे? एनीवन? जेट्स में है आपका फिल्टर एंड काउंट यूनिक, यूनिक जेट्स में। यूनिक तो अभी का जैसे फॉर्मूला, मैं ट्रेडिशनल फॉर्मूला या जो आज भी लोग कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे इसका, पहले हम क्या करते थे इसको, अगर मेरे को ये निकालना है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, यहां से मेरे को केवल और केवल चाहिए कि ये आ जाए, इसमें से यूनिक आ जाए, वन टाइम आ जाए। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो मेरे को क्या करना पड़ता था, बताइए, क्या करते थे? रिमूव डुप्लीकेट्स रिमूव दिखाएंगे। डुप्लीकेट्स करते थे। तो वो एक, पहले वो भी किसी को पता नहीं था। उसमें भी मैंने देखा है, मैं जैसे भाई पहले जो एक्सेल नहीं था, तो मैं क्या करता था, मेरे को मैंने देखा, इसमें जाता था मैं, और इसमें जाकर के ड्रॉप डाउन में जाता था, और यहाँ पे उसको मिल जाती थी इंडिविजुअल लिस्ट। तो वो क्या करता था, इसमें से रट लेता था एलमोंड्स बियर, और यहाँ पे जाकर के टाइप करता था ALMONDSC, उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती थी, फिर भूल जाता था, फिर इसमें जाता था, फिर करता था, ऐसे करके वो नाम लिखता था। फिर उसको पता लगा रिमूव डुप्लीकेट, तो उसने इसको किया, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जा करके इसमें एक डेटा की कमांड है, यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे होता था रिमूव डुप्लीकेट। तो ये वाली चलाई रिमूव डुप्लीकेट। तो अब इसके बाद ओके किया, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मेरे 48 डुप्लीकेट्स हट गए, 24 यूनिक आ गए। अब ये सारे के सारे यूनिक नेम आ गए जो वन टाइम आ रहे हैं। अब उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें से सपोज करो मेरे जो यूनिक हैं वो केवल ये तीन ही है, बाकी मेरे पास है ही नहीं। अब इसमें से क्या हुआ, ये तो है नहीं, या मैंने बोला कि केवल मेरा एक ही प्रोडक्ट है और वो है बियर। अब यहाँ पे तो सारे ही आ रहे हैं। अब इसका मतलब दोबारा से कुआं खोदना है, दोबारा काम करना है, सारी चीज मेरे को अगेन करनी। इट इज नॉट डायनामिक, व्हाट टू डू। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या फॉर्मूला दिया, एक नया फॉर्मूला दिया। उसने कहा यूनिक, मैंने यहां पे डाल दिया यूनिक, और रेंज दे दी कि मेरे को यहां से लेके यहां तक ढूंढे और यूनिक करके दे दे। तो अब आप देखोगे दोनों का रिजल्ट सेम आ गया मेरा, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आ गया बिल्कुल। लेकिन अब इसकी ब्यूटी क्या है कि अगर मेरे पास दो ही प्रोडक्ट हैं सपोज, तो यहाँ पे केवल दो आ गए। मैंने कहा यहाँ पे चाय, तो चाय भी आ गई। मैंने कहा कॉफी, कॉफी भी आ गई। अगर इसके ऊपर जाकर के मैंने कुछ और डाल दिया, समोसा, तो देखिए समोसा भी आ गया। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें मेरी ऑटोमेटिकली यूनिक आ रही है, सिंगल सेल फॉर्मूला। अब ये बैंक केस ही गया। फिर उसके बाद बैंक का क्वेश्चन आया, अरे सर ये तो अच्छा हो गया, वो अभी बोल रहे थे ना लोकेश जी की, दिल मांगे मोर, कि अच्छा ये हो गया तो कुछ और भी चाहिए मेरे को। तो उसने कहा कि सर इसमें जब हम फिल्टर करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करता है ये, नाम तो देता है यूनिक, साथ में अल्फाबेटिकली भी दे देता है। लेकिन इसने अल्फाबेटिकली तो दिए नहीं, समोसा ऊपर आ रहा है, चाय नीचे आ रही है। इज इट पॉसिबल कि ये मेरे को अल्फाबेटिकली भी दे दे? तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक नया फॉर्मूला दे दिया, और उस फॉर्मूले का नाम दे दिया उसने सोर्ट, SORT, सोर्ट। कि आपको सोर्ट मैनुअली नहीं करना, आपने क्या किया, इक्वल टू SORT सोर्ट, और आपने जैसे ये रेंज आई, इसको जाकर के सोर्ट कर दिया। तो अब की बार ये सोर्ट भी हो गया। लेकिन अब आपको ऐसा थोड़ी कि पहले यूनिक अलग करेंगे सोर्ट अलग करेंगे। तो वो क्या कर सकते हो, आप पैकिंग कर सकते हो। आपने क्या किया, यूनिक बनाया, और यूनिक के बाद SORT सोर्ट, और एंटर मार दिया। अब आपका डेटा क्या हुआ, यूनिक के साथ साथ सॉर्ट हो गया। अब अगर मैंने यहां पे डाला अल्फा, तो अल्फा ऊपर आ गया। मैंने डाला जीरो,
तो जीरो देखिए नीचे आ गई अपने आप से। तो मैं जो भी डाटा डालूंगा यूनिक भी होगा, साथ साथ वो सॉर्ट भी हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपने सीख लिए, यूनिक कैसे होगा, सॉर्ट कैसे होगा। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। अब ये जितने भी फॉर्मूले हैं, अब इससे मेरा ऑटोमेशन काफी इजी हो गया है। अब आज की डेट में कुछ भी काम आता है, मैं 99% में कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर आपका एक्सेल में डाटा और एक्सेल आप मेरे को लॉजिक दे सकते हो, 100% वो ऑटोमेट हो जाएगा, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स हो। तो ये एक आपका। मिनट। जी। हाँ सर, डाउट है सर सरोजनी जी हाँ को। हाँ बोलिए। सरोजनी जी, आपको अनम्यूट कर देता हूँ मैं। यस, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी बोलिए जी। Yeah, sir, I'm Gopal Subramaniam. It is my wife's domain name. In the case of this, you had said about the telephone numbers. If it's an international number, say plus 971 or 968, हाँ then हाँ। how will we be able to distinguish in the previous example which you showed नहीं तो इन about the फोन नंबर्स, उसमें तो ये है ना कि अगर आपके पास फोन नंबर है और उसमें आपको Hmm. इंटरनेशनल कोड दे रखे हैं, अब आप उसको इंटरनेशनल कोड को फिर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना। जैसे मैंने आपको जो फॉर्मूला है वो दिया है आपको, जैसे अभी मैंने आपको जो पिछली जो एग्जांपल में मैंने दिया था आपका, वो Hmm. जो क्वेश्चन था आपका, ये इसके अंदर फ्लैश फिल। तो कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे Hmm. आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे पास ये इंडिया के नंबर हैं, तो मैंने ये Hmm. बना दिया। अब आपके पास Hmm. ऐसा कोई डाटा है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल न्यू Hmm. किया मैंने फाइल पे, Hmm. और यहाँ पे जा करके मैंने ये डाल दिया। अब आपके पास Hmm. ऐसे कोई कंट्री के वही है नंबर्स हैं, तो वहां से Hmm. अगर आपको इसमें से निकालना है कि +91 के अलावा यहाँ पे आपका +97 है, यहाँ पे Hmm. आपका जो कोई और दूसरा नंबर है, ये तो आपने प्लस वो Plus 971. Plus 971. हाँ इसके आपने डैश लगा दिया यहाँ पे एक बार, और ये इसके बाद यहाँ पे जा करके आपने फिर से आपने डैश लगा दिया, और यहाँ पे आपने कुछ कुछ डाल दिया जैसे, और किसी में डाल दिया आपने कि ये 92 है आपका, यहाँ पे आपने डाल दिया 971 है। Hmm. And Oman is 968. और ये आपको इसके आगे वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, अदरवाइज वो उसको फॉर्मूला समझ रहा है जैसे। तो अगर Yeah, I आपको got इस it. टाइप I got ये, it. तो यहाँ पे आपने यहाँ पे डाल दिया 968, तो इस टाइप से आपने ये फॉर्मूला कुछ इसको दे दिया। अब आपको इसमें से निकालना है कि मेरे को इस टाइप के कोई नंबर्स हैं मेरे पास, और वहां से फिर मेरे को कोई डाटा निकालना है इसमें से। तब आपको इसका वो दोगे क्लू, तो ये कर जाएगा काम इसके अंदर, कि आपने यहाँ पे जा करके दिया कि मेरे को यहाँ से क्या चाहिए, मेरे को इक्वल टू +91, आपने ये दिया, और अब की बार कंट्रोल ई किया आपने, तो ये देखिए इसने दे दिया आपको। यू गोट इट। Yeah, yeah, I got it. I got it. Otherwise, you have to use text split and text join. That was even difficult. नहीं The वो तो, earlier way. हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं यही बता रहा हूँ ना। अगर कोई चीज आपको, भाई घर से अगर आपको कोई जो है ना 50 लाइक कोई एक पत्थर है या कोई टेबल है Hmm. उसको हटाना है, अब उसके लिए आपको क्रेन बुलानी है, तो क्रेन तो हटा ही देगी। लेकिन आपको पता है कि भारत उसका सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओगे, उसको 100 रुपये दोगे और वो कर सकता है। ये आपकी इंटेलिजेंस है कि आपको सिक्योरिटी गार्ड से हटवानी है कि क्रेन Hmm. बुला के दीवार तोड़ के उस टेबल को हटाना है। इट डिपेंड्स ऑन यू ना। Yes, sir. Very true. Thank you. Please continue the session. यस यस, जस्ट वन मोर मिनट। एनी मोर डाउट्स? रिमूव डुप्लीकेट्स, ये वो एक दो डाउट थे सर, एक मिनट। हाँ हाँ। जस्ट वन सेकेंड। इनिशियल डायल कोड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इज देयर एनी ऑप्शन टू वैलिडेट द रिप्लेसमेंट, और डू वी नीड टू चेक मैनुअली? मतलब आपने जब दिखाया कि सेकंड टाइम जब करते हैं, उसको सेकंड क्लू पे जब दे रहे हैं, तो वैल्यू चेंज हो जा रही है ऑटोमेटिकली। तो उनका हम्म। क्वेश्चन है कि ये रिप्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, वैसे वैलिडेट कैसे होगा मतलब? अब वो तो भैया, अब आपने जैसे लाइक जो है ना, भाई मैं तो बैंक का ही एग्जांपल दे सकता हूँ पहले। भाई अब उसके बाद जब वो इसको इन्होंने भाई फाइल पे काम किया, अब उसके बाद उसने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू सम और टोटल किया। अब वो देने से पहले वो कहता था नहीं जी, मैं तो कैलकुलेटर पे जा करके टाइप करके मैं सारा चेक करूंगा कि सम का फॉर्मूला ठीक लगा कि नहीं लगा। अब जब उसको वो सम करके देख लेता था, तब उसके बाद वो करता था, चाहे उसको 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे। तो ऐसे आप भी अपना जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग कर लो। भाई देख लो कि अगर आपको लगता है कि आपका वो कहीं ना कहीं डाटा में प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज तो कैसे पता लगेगा उसका। तो उसके लिए तो एक्सपीरियंस से जब आप काम करोगे, 2 बार करोगे, 5 बार करोगे, कोई ब्लंडर करोगे, आपने काम किया सुबह से शाम तक, पहले दिन आर्टिकलशिप में आए आप, और पता लगा बॉस ने दे दिया कि अच्छा ये टाइप करो, ये टाइप करो, इसमें कंप्यूटर पहली बार यूज किया, आपने पूरा दिन काम किया, और शाम को जो है बिना वो करके और कंप्यूटर बंद कर दिया फाइल सेव नहीं की,
तो जिस दिन आपने पहले ऐसा काम जिसके साथ हो गया, वो जिंदगी में भूलेगा ही नहीं कि मेरे को सेव करना होता है हर 2 मिनट में, 5 मिनट में। तो जब तक कोई ब्लंडर नहीं करेंगे तब तक कैसे सीखेंगे? तो सही वो तो बात है सर। टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना आपको, टेस्टिंग करोगे तो आपको पता लगेगा। उसके फिर अलग अलग चीजें हैं। तो उसके लिए कि भाई अगर उसको मेरे को रिप्लेसमेंट है, कहाँ से मैं करूं? तो वो चीज़ तो आपको एक्सपीरियंस से आएगी कि अच्छा, एक कैसे ढूंढना है, मेरे को क्या ढूंढना है, कहाँ पे गलती है, उसको ठीक कैसे करना है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं जी। तो आपने शॉर्ट फॉर्मूला, आप शॉर्ट फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आपने ये शॉर्ट का देखने के बाद, डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू शॉर्ट? कि ये तो बड़ा अच्छे से कर दिया इसने, और मेरा यूनिक भी कर दिया और शॉर्ट भी कर दिया। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन हेयर रिगार्डिंग शॉर्ट? नो सर। एनीबडी एल्स? नो मैंने सर। कोई क्वेश्चन नहीं शॉर्ट का। अब ये क्वांटिटी जो है ना, वगैरह अगर चाहिए तो सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे अब आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि स्पीकर को आपने पकड़ना है कि कितने आप स्मार्ट क्वेश्चन पूछते हो ना। जब मेरे फिजिकल सेशन होते हैं, भोला बैंक नोज कि आई ऑलवेज गिव चॉकलेट इवन फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, स्मार्ट यस क्वेश्चन, यस कि अगर यस। अच्छा आई क्वेश्चन एम किया तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सर इसने यहाँ पे जो है ना अल्फाबेटिकली कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, मेरे को ये सॉर्टिंग चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये कैसे होगी इसके अंदर? ये तो आपने शॉर्ट फॉर्मूला दे दिया और ये काम हो गया इसका, लेकिन डिसेंडिंग में तो करेगा नहीं। कैसे होगा ये? अभी आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग आगे कि अरे ये वाले तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे को डिसेंडिंग करना हो तो कैसे होगा? तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतनी ज्यादा लर्निंग होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, जब सॉर्ट किया ये, अब आपको जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं गया और आपने जा करके यहाँ पे दिया इक्वल टू सॉर्ट, और मैंने इसको जा करके सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने एंटर किया, इसने सॉर्ट कर दिया। किसके बेस पे किया? इट सॉर्टेड ऑन बेस्ड ऑन द जेंडर, कि फीमेल को पहले ले लिया और बाद में एम को ले लिया। अब आप कहोगे नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू सॉर्ट बेस्ड ऑन द नेम, आई वॉन्ट टू सॉर्ट बेस्ड ऑन द एज। तो पहला जो एग्जाम्पल दिया उसने तो उसको, एक ही कॉलम था, उसने सॉर्ट कर लिया। बट हेयर हाउ शुड आई डू? मेरा जो सॉर्ट है वो तो काम करेगा नहीं। हाउ एक्सेल विल कम टू नो कि मेरे को कौन सा कॉलम सॉर्ट करना है, और डिसेंडिंग करना है कि असेंडिंग करना है? तो इसके लिए आपको क्या है, ये जो फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को अच्छे से देखना है। उसके लिए यू नीड टू गो टू द मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स। इस पे क्लिक करोगे, तो यहां पे जब क्लिक करोगे तो यू आर गोइंग टू सी कि यहां पे देखिए इसमें लिखा हुआ है एरे, यहां पे लिखा है सॉर्ट इंडेक्स, यहां पे लिखा है सॉर्ट ऑर्डर, यहाँ ये चीज लिखा हुआ है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये देखिए, प्रेम पांडे जी ने एक हाथ भी उठा रखा है। आप में से कोई बताएंगे लाइक ये परशुराम जी, कि इसमें देखिए, ये देखिए सामने यहाँ पे एरे जो है ना, ये बोल्ड आ रखा है। ये जो शॉर्ट इंडेक्स है, शॉर्ट ऑर्डर है, ये अनबोल्ड है। तो मतलब क्या हुआ कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने ये बनाया फॉर्मूला, कई बार नहीं होता प्रिंटर की इंक खत्म हो जाती है, तो ऊपर वाली चीज तो अच्छे से टाइप हो जाती है, नीचे वाली टाइप नहीं होती ठीक से। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, इंक खत्म हो गई या कुछ और रीजन है? डिड यू अंडरस्टैंड माई बताइए रुक, क्वेश्चन? चैट्स में है सर, बताइए दे आर रुको। ऑप्शनल। हाँ जी। दे आर ऑप्शनल। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इसमें तो कौन ये कह रहे हैं दीज आर ऑप्शनल? तो लाइक मे बी वी आर नॉट यूजिंग, ये कह रहे हैं मिस्टर भट्टाचार्य के हम यूज नहीं कर रहे, इसलिए वो मतलब इसको यूज करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। लेट्स सी कि मैंने इसको यूज करना शुरू कर दिया। मैंने कहा सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग, ये तो बोल्ड नहीं हुआ। मैं इसको हटा देता हूं, ये अनबोल्ड हो जाएगा क्या? ये तो अनबोल्ड भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, इसका एक पर्पज है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको क्या दिया है, जैसे आप ट्रेन की टिकट बुक कराते हो, जैसे आप जीमेल आईडी बनाते हो, जैसे आपने कोई फॉर्म भरते हो, तो कुछ फील्ड होते हैं कंपलसरी, कि उसके दिए बिना आपकी आईडी बन ही नहीं सकती, आपकी टिकट बुक हो ही नहीं सकती जब तक आप फोन नंबर नहीं दोगे, अपनी ईमेल आईडी नहीं दोगे। और कुछ चीजें होती है कि आपको लाइक ट्रेन जर्नी में व्हाट फूड प्रेफरेंस यू आर हैविंग, आपने अगर नहीं दी तो इट विल एज्यूम्ड कि यू आर ए वेजिटेरियन या
नॉन वेजिटेरियन, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। तो कुछ चीजें हैं कि जो ऑप्शनल, ये अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो मान लेंगे। तो ऐसे ही एक्सेल ने क्या किया, जब ये फॉर्मूला बनाया सॉर्ट का, उसने मान लिया कि अगर आपने पहली इसकी आर्ग्यूमेंट दी तो ये मानेगा, अगर आपने सेकंड आर्ग्यूमेंट नहीं दी, थर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं दी, इट विल एज्यूम कि यू वांट टू सॉर्ट फर्स्ट कॉलम एंड you want to sort in ascending order. But in case you want different way, तो give the optional argument. So second argument is sort index. अब आपने कहा मेरे को थर्ड कॉलम सॉर्ट करना है, फिर इसने कहा सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स 1, डिसेंडिंग मीन्स -1। तो आपने कहा असेंडिंग। अब यहां पे आपने दे दिया, अब इसको एंटर किया। अब इसने सॉर्ट किया एज के बेस पे, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर पे। आपने किया यहां पे -1, तो अब इसने डिसेंडिंग पे कर दिया। आपने कहा मेरे को सेकंड कॉलम पे करना है, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम पे हो गया राजेश पूनम। तो ये आर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, और अगर मैंने इसको 1 कर दिया तो ये असेंडिंग। यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया इसके अंदर जैबरा, तो जैबरा सबसे लास्ट में जाएगा। अनामिका, यहाँ पे मैंने डाल दिया अनामिका या आस्था, तो ये आस्था मेरी सबसे ऊपर आएगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। और ये ब्यूटी है कि इसमें 4 की रेंज दे रखी है मेरे को। कल को 4 की जगह यहाँ पे बीच में अगर मेरी रेंज में कोई और ज्यादा नाम आ गए, तब भी ये अपने आप से रेंज को बढ़ा देगा। आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है अपने आप से, अगर इसके बीच में डाला तो। लेकिन अगर आपने बोला मेरे इसके लास्ट में डाला, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि एक और फीमेल, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सोनिया, और यहाँ पे डाल दिया 16, तो ये तो आया ही नहीं। अब क्या करें जी? हाउ एक्सेल विल कम टू नो कि रेंज ऑटोमेटिक बढ़ जाए इसके अंदर, और मेरी रेंज अगर कम कर दी मैंने तो ये कम भी हो जाए। इज देयर एनी वे? अभी तो उसने क्या किया, इसको लाइक रेंज दे रखी है तो इसने इसको 0 मान लिया, तो 0 मान लिया तो इसने इसको यहाँ पे वो ट्रीट कर रहा है इसको ऐसे ही, उसको 0 मान करके ये दे रहा है कि इसने रेंज दी है। इज देयर एनी वे कि जितना मेरा डाटा है केवल उतने पे ही काम करे? उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ने एक टेक्निक लेके आया अभी रिसेंटली, 6 महीने पहले। उसने एक वंडरफुल, लाइक दे हैव गिवन सम वंडरफुल लाइक थिंग। अगर आप में से किसी को पता है व्हाट इज दैट? यस, चैट्स में है सर डॉट फंक्शन। डॉट फंक्शन। तो अभी जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट फंक्शन है जो आया है इसके अंदर, और उसको बोलते हैं ट्रिम रेंज। ट्रिम रेंज फंक्शन क्या करता है कि आपने, अब जैसे मैंने इसकी रेंज दे दी 13 की जगह, और मैंने बोल दिया 1300 तक। 1300 ले तो लेगा, लेकिन सब जगह पे ये 0 देगा, जो आई आई डोंट वांट। आई वांट कि जहां पे लास्ट रो है, वट एवर लास्ट रो आई एम हैविंग, वहां तक ये डाटा ले ले। तो उसके लिए इसमें क्या किया, आई कैन गिव माई रेंज, कि जैसे मेरे को यहां पे देनी है रेंज, तो मैंने कहा ट्रिम रेंज, और ट्रिम रेंज में मैंने जाकर के ये रेंज दे दी कि मेरे को 22 से लेके 2200 तक। तो ये क्या करेगा, ओनली टिल वेयर आई एम हैविंग डेटा वहां तक लेगा। अगर मैंने यहां पे केवल 2 इसको डिलीट कर दिया तो यहां पे केवल 2 ले रहा है, राइट। और अगर मैंने इसके अंदर बढ़ा दिया डेटा तो ये मेरे को बढ़ा हुआ डेटा भी ले लेगा। यहां पे अगर मैंने इसको ये किया तो ये देखिए इसको बढ़ा हुआ डेटा भी ले लिया। बट ये 0 नहीं चाहिए मेरे को, तो यहां पे ट्रिम रेंज में यूज कर सकता हूं। बट उस ट्रिम रेंज को भी माइक्रोसॉफ्ट है गिवन एक बड़ा यूनिक उसने और यूजर फ्रेंडली दे दिया। जैसे कि आप लोग पहले कॉनकैटिनेट यूज करते थे 2 सेल को जोड़ने के लिए, विजय अग्रवाल, और फॉर्मूला होता था कॉनकैटिनेट, और आप करते थे ये कोमा अग्रवाल। इसका दूसरा तरीका क्या होता था, एनीबडी नोज? फॉर कॉनकैटिनेट विदाउट फॉर्मूला देयर वाज समथिंग व्हाट वी यूज टू डू। क्या करते थे? एंड एंड चैट्स में साइन ऐसे होता ही था, कि एंड। मैंने यहां पे डाल दिया इक्वल टू विजय एंड, एंड डालता था, और उसके बाद में ये करता था तो ये हो जाता था इक्वल टू ये विजय एंड। यहीं पे मैंने इसके आगे इन्वर्टेड कोमा जोड़ देना था, या फिर मैं सेल का रेफरेंस देता था इसका, ये हो जाता था। तो सेम वे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा कि इसके आगे C10 और E1300 है, डबल डॉट के बाद एक डॉट और लगा दो, बस एक सिंगल डॉट और लगा दोगे डबल डॉट के बाद, तो इट विल एज्यूम कि आपकी जो रेंज है उस रेंज में टिल लास्ट सेल उसको वो डेटा को लेगा।
तो जैसे मैंने इसको एंटर किया, अब ये मेरी लास्ट सेल तक का डेटा ये मेरे को लेगा। अब अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया सपोज ये, तो ये देखिए केवल 3 को ले रहा है। अब ये 0 नहीं लेके आ रहा है, क्योंकि रेंज मेरी है 1300 तक, बट इट इज ट्रीटिंग रेंज टिल ओनली 12 ओनली। दिस इज द ब्यूटी। ये ट्रिम रेंज एक नया फॉर्मूला कंसेप्ट आया है, और उस कंसेप्ट को और इजी बना दिया है डॉट से, डबल डॉट के बाद एक सिंगल डॉट। अब कल को मेरी लिस्ट है, यूनिक फॉर्मूला निकालना है, और मेरी जो लिस्ट है मास्टर बना रखा है मैंने कहीं पे, और उसके अंदर हजारों नाम है, और उसमें नाम बढ़ते जाएंगे आगे, कल को मेरे नाम कितने भी हो जाएंगे। अब अगर मैं सबकी यूनिक अगर मेरे को निकालनी है, तो मैं पहले क्या करता था, मैंने यूनिक दिया, रेंज दूंगा। अब मैंने पूरा कॉलम दे दिया। अगर मैं पूरा कॉलम दूंगा तो यूनिक तो बना देगा, लेकिन पूरे कॉलम के बेस पे बनाएगा। लेकिन जब मैं इसके अंदर यहां पे दूंगा ट्रिम रेंज, एक डबल डॉट और लगा दूंगा, तो ये टिल लास्ट सेल तक ही यूनिक बनाएगा। ये इसका डिफरेंस है। तो व्हेन यू विल प्रैक्टिस, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि इस एक सिंगल डॉट से हाउ लाइक इट इज गोइंग टू चेंज एफिशिएंसी ऑफ योर फाइल, कि आपकी जो फाइल की एफिशिएंसी है वो काफी अच्छी इंक्रीज होगी, और आप जो है ऑटोमेशन में इट इज गोइंग टू बी काफी इजी हो जाएगा, बहुत ही वंडरफुली। लाइक आई एम फाइंडिंग इट, जो एक से एक्सपीरियंस है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है इसका। आई होप यू गोट इट। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। Prem Pandey, you were raising hand. You can, should I unmute you? Yes, you can unmute yourself, Prem Pandey. Not required? हाँ जी, अनम्यूट कर प्रेम दिए। प्रेम जी। हाँ, ठीक है, ठीक है प्रेम सर, जी। ठीक है वो सर। डॉट फंक्शन जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट में लगाया डॉट, हाँ हाँ ये चीज हम लोग पहले भी लगा सकते हैं, मतलब हाँ, लेफ्ट। पहले भी लगा सकते हैं, तो पहले अरे लगाओगे जनरली प्रैक्टिकली लास्ट वाला ज्यादा काम करेगा। अदरवाइज पहले भी लगाओगे ना, तो पहले वाले को हटा देगा, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है केवल उसको लेगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे जा करके ये कर दिया, और अब अगर मैंने पहले डॉट लगाया इसके अंदर, मैंने इसको कहा कि इक्वल टू सॉर्ट, मैंने इसको कहा कि मेरे जैसे सपोज मेरे पास नाम है, हाँ हाँ, और अब मैंने यहाँ पे जा करके इसको बोल दिया सॉर्ट इक्वल टू सॉर्ट, और मैंने एक तो दे दी पूरी रेंज, डीडी पूरी रेंज दे दी, डीडी। तो ये आपका काम ही नहीं करेगा। क्यों? 10 लाख रोज पे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर वाला रो को हटाने के लिए जो लेफ्ट साइड जो डी लिखा है, हाँ उसके बाद में डॉट लगा देंगे, मतलब हाँ, कॉलम के लेफ्ट साइड। तो कॉलम के लेफ्ट साइड में इधर डॉट लगा देंगे, तो आपका ऊपर वाला गायब हो जाएगा। और जब मैं जी इधर वाले पे भी डॉट लगा दूंगा, तो ये नीचे वाला गायब हो जाएगा। अब ये जो लेगा एग्जैक्टली 7 से लेके 21 तक ही लेगा ये डेटा। अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, तो ये केवल इसी को ये सॉर्ट करेगा, अमिताभ पूनम ये लेकर के आएगा। और अगर मैंने बिल्कुल। यहाँ पे इसकी जगह पे ये लास्ट वाला डॉट हटा दिया सपोज, तो तो ये देखना ये क्या पूरा करेगा, पूरा पूरा कॉलम उठाएगा। पूरे कॉलम लेकर के लास्ट तक जाएगा। बोलो कितनी आपकी बिल्कुल लास्ट। अननेसेसरी मेमोरी इसकी जो है ना। आपको एक्स लुकअप लगाना है, आपने पूरा कॉलम का रेफरेंस दे दिया, तो क्या हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी तो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है ना। वो तो एक्सेल आपकी फाइल इतनी छोटी होती है, एक्सेल आपको पता ही नहीं चलता। बट अगर आपका बहुत ज्यादा डेटा है और आपके फॉर्मूले लगे हुए हैं विदाउट डॉट, आप जी उसके जी जी। अंदर ये चाहते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। अब अगर आपने रेंज को फिक्स कर दिया और भूल गए, उसके बाद अगर आपने डेटा डाल दिया, तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या हम्म। दिया, आप भूलोगे तब भी वो काम करेगा, और एफिशिएंसी भी रहेगी आपकी। ये बेसिकली सर, ये डॉट फंक्शन जो है, मतलब अगर अरे अगर बैंड जा रहा है एक्सेल के हाँ सेल काउंटर पर, तब उसमें ये डॉट फंक्शन लगाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। ठीक है सर। ये चलिए। सरोजनी जी को भी, परशुराम जी को भी डाउट है। परशुराम जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। परशुराम जी। Yeah, yes, sir. Can we get the YouTube recording just to have Yes, a yes, look? don't worry about that. Don't worry about that. Yes. Thank you. Thank Yeah. you. Please Okay. continue. One more doubt in the chats. Just give me 1 minute. Uh, एक second. How to sort unique text in bank statement of client in a Excel so that we can sort out multiple transactions a short period of time. नहीं तो उसमें क्या यूनिक करना, वो तो आप उसको रेंज को सिलेक्ट करो और यूनिक डाल दो उसमें, तो आपका हो जाएगा। उसमें कोई इनवॉइस नंबर है, लाइक इन यू आर हैविंग 1 लाख इनवॉइस, और आपको उसमें से यूनिक निकालना है, तो जस्ट आप यू सेलेक्ट द कॉलम
प्रेस इक्वल टू यूनिक, और आपको यूनिक करके दे देगा वो। क्या क्वेश्चन है उसमें? लाइक आई डेंट अंडरस्टैंड कि उसको, उनको क्या चाहिए। मतलब वो वही सर, वो ट्रांजेक्शन्स में आप यूनिक लिखेंगे तो बैंक चार्जेस आपका सारा एक बार में आ जाएगा, इस टाइप से। हाँ, जो भी चाहिए उनको, तो उसमें हम्म। जिस भी चीज पे करना चाहेंगे वो हो जाएगा उसके अंदर। वो तो यूनिक लिखते ही उस यूनिक के बेस पे आ जाएगा उनका। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ। चलिए जी, नेक्स्ट हमने सीक्वेंस देखा, यूनिक देखा, सॉर्ट देखा। अब हम चलते हैं जो लुक, हम हर आदमी चाहता है कि वी लुकअप की बात करता है, जबकि मैं पिछले 8 साल से लोगों को कह रहा हूं, नेवर एवर यूज वी लुकअप। वी लुकअप को तो आपने जिंदगी में कभी यूज ही नहीं करना है। फॉर लास्ट 8 years आई एम सेइंग वी लुकअप इज ए वेरी वेरी बैड फॉर्मूला। ओनली बैड फॉर्मूला कब हुआ? जब ये एक्स लुकअप आ गया। उससे पहले वी लुकअप वाज वंडरफुल फॉर्मूला, बट उसमें काफी प्रॉब्लम्स थी, जिसके कारण हमने पता नहीं कितने सालों तक इस वी लुकअप को झेला है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम वी लुकअप के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ वी लुकअप? एनीवन? राइट टू लेफ्ट लिखा है किसी ने, लिमिटेड वन क्राइटेरिया। लेफ्ट टू राइट लिखा है किसी ने। वही एक हाँ, डायरेक्शन में देखता है मतलब बेसिकली। एक डायरेक्शन में देखता है। तो पहले क्या होता था, जो वी लुकअप था वो क्या काम करता था? लाइक आई एम हैविंग दिस डेटा, एक स्मॉल डाटा है मेरा, जस्ट फॉर योर ट्रेनिंग पर्पज, सो दैट कि आप दोनों चीज देख पाओ। अदरवाइज प्रैक्टिकली क्या होता है, डेटा मेरी दूसरी सीट पे होता है या दूसरी फाइल में, और रिजल्ट दूसरी सीट पे होता है। तो मैं वी लुकअप करता था, यहाँ पे डालता था वी लुकअप। सबसे पहले व्हाट आई वांट टू लुकअप, दीपक, टेबल एरे, कहाँ पे मेरे को लुकअप करना है? तो मैंने कहा कि मेरे को तो लुकअप करना है कि ये जो टेबल है मेरी, कि यहाँ पे सपोज करो ये मैंने एक बार यहाँ पे ये डाल दिया, और इसके अंदर मैंने एक सीरियल नंबर भी डाल दिया, कि यहाँ पे मेरे सीरियल नंबर भी होते थे 1 2 करके, और ऐसे सीरियल नंबर भी थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लगाया कि वी लुकअप, और इसमें लिखा इसने कि टेबल चाहिए जी, आपको कौन सी टेबल में से लुकअप लगाना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे कोमा डाल के और ये टेबल का रेफरेंस दे दिया कि जी ये टेबल है मेरी। फिर मैंने इसको दिया कोमा, कौन सा कॉलम देखना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो मैंने दे दिया 4 कॉलम। और व्हाट इज अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच। तो जो भी किसी को सिखाता था, अरे इसके अंदर ऑलवेज राइट फॉल्स, व्हाट इज फॉल्स व्हाट इज ट्रू, वो किसी को नहीं पता। बट वी ऑलवेज से कि इसको फॉल्स डालो या जीरो डालो। तो हमने भी इसको जीरो डाल दिया। अब ये काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा ये? हाँ जी, व्हाट इज द मिस्टेक हेयर, व्हाई इट इज फर्स्ट नॉट कॉलम डूइंग? से नहीं आएगा ना सर, दीपक आपने लिया है तो दीपक शुड बी द फर्स्ट कॉलम, टेबल का स्टार्टिंग। तो अब आपका जो स्टार्टिंग जो कॉलम होना चाहिए वो आपका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, मतलब आपको A3 नहीं करना था, यहाँ पे आपको B3 करना था। पहली प्रॉब्लम तो ये है। तो आपको याद रखना है कि जहां से देखना है वो आपका स्टार्टिंग होना चाहिए। तो यहां से आपने 4 की जगह अब आपको 3 नंबर डालना है यहाँ पे, तो आपका रिजल्ट आएगा। अब कभी अगर बाय द वे आपने दूसरी, क्या प्रॉब्लम, जब मैंने इसको खींचा तो इसने 99 दे दिया। अब अगर मैंने इसको खींचा, मनीष के कितने नंबर आएंगे? हाँ जी परशुराम जी, कितने नंबर आएंगे आपके इसमें, मनीष के? एरर। अनम्यूट करके बताओ सर, परशुराम जी। एरर आएगा सर, एरर। एरर आएगा क्यों भाई? क्या मनीष नाम तो है इसमें? पीछे नीचे चला गया ना वो, नीचे जाता जा रहा है। अरे तो ये देखो, एक ये प्रॉब्लम और आ गई। अब मेरा क्या हुआ, रेंज मैंने ठीक दे रखी है, इसको दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मेरी रेफरेंस की रेंज चेंज हो गई। तो इसने क्या किया, जैसे जैसे मैं नीचे गया, दीपक की जगह मनीष हो गया, वो तो ठीक है, बट रेंज ऑल्सो गोट चेंज। दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम, कि मेरे को डॉलर लगाना पड़ेगा अब यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे जाऊं और इसकी जगह पे इसको फिक्स करना होगा। डॉलर कंसेप्ट एब्सोल्यूट। नाउ इफ आई एम गोइंग टू ड्रैग, देन ओनली इट इज गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट। अब अगर गलती से मेरा नेक्स्ट टाइम जो रिजल्ट आया, जो डाटा आया, वो मेरा नेम इधर ना होके अगर इधर आ गया, सपोज कंट्रोल एक्स करके मैंने कंट्रोल वी कर दिया, तो एरर आ गई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलता है, यहाँ पे लेफ्ट में नाम होना चाहिए, राइट में मार्क्स। ये काम नहीं करेगा। इससे भी बड़ा ब्लंडर क्या हो जाएगा, मेरे बॉस ने बोला कि ये जो मार्क्स हैं ये हैं दिस ईयर। बॉस ने बोला इसके आगे एक कॉलम में, अगले जो रिपोर्ट आई उसके आगे लास्ट ईयर मार्क्स और डाल दिए, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 100 90 और
पता लगा जी ये सारे के सारे मार्क्स मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब पता लगा जी दीपक के मार्क्स कितने हो गए, 90। आने कितने थे उसके, जो दीपक के मार्क्स, वो 64। आदित्य के मार्क्स कितने आ गए, 40। और आने कितने थे, 99। अब आप सोचिए जब तक उसका रिजल्ट आया उसने देखा 99। पता लगा जी घर वाले तो सोच रहे हैं कि बेटा डॉक्टर बनेगा, भाई अच्छा रिश्ता आएगा, ये होगा वो होगा, और उसके 40 मार्क्स आए। पता लगा लड़के ने सुसाइड ही कर लिया। जब तक रिजल्ट को ठीक किया गया, अरे अरे ये 3 नंबर नहीं, ये तो चौथा कॉलम था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब वहां कहाँ से वापस आएगा। और पता लगा जी दीपक जो है उसने 90 नंबर आगे पार्टी दे दी उसने, या कोई है, या भाई मनीष है जैसे, उसने 42 की जगह उसके 100 आ गए, जबकि वो फेल होना था। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी पहले चल रही थी, बिकॉज कि इसमें अब हर बार आपको याद रखना है कि ये तीसरा कॉलम नहीं है, अब ये चौथा हो गया, बट ये कॉलम तो चेंज हो सकता है। बीच में आपने कोई कॉलम इंसर्ट कर लिया। तो ये प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर कर दी माइक्रोसॉफ्ट ने एक्स लुकअप को देके। हाउ एक्स लुकअप इज गोइंग टू डू, लेट्स अंडरस्टैंड कि आपका कैसे काम करेगा। वी लुकअप की जगह हम करते हैं एक्स लुकअप। तो यहां पे मैंने कहा इक्वल टू एक्स लुकअप। अब की बार आपने यहां पे पूरी रेंज दे दी इसकी, G2 से G4 को देखना है आपने। मैं डॉलर भी नहीं लगाऊंगा इसमें। लुकअप एरे, पहले था टेबल एरे, अब ये कह रहा है मेरे को लुकअप एरे देखना है, तो मैंने केवल लुकअप एरे दी, B3 टू B9। फिर ये कह रहा है रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में मैंने केवल मार्क्स दिए बस। और एक चौथी, पिछली वारे में तो क्या था, वी लुकअप में अगर कहीं पे मेरा नहीं मिले तो इट इज गोइंग टू शो एरर। यहां पे ये पूछ रहा है इफ नोट फाउंड, एक नई चीज आगे रिक्वायरमेंट, तो आप क्या चाहते हो। तो मैंने कहा कि वहां पे आप मेरे को 0 दे देना। जैसे एंटर किया रिजल्ट आ गया मेरा। अब अगर यहां पे मैंने आदित्य की जगह विजय लिखा तो यहां पे देखिए एरर आ गई, लेकिन यहां पे 0 आ गई, नहीं है कोई बात नहीं, 0 आ गई यहां पे। अब देखिए मैंने क्या किया, इस नेम को उठाया, कंट्रोल X किया और इधर ले गया। देखिए वी लुकअप फेल हो गया आपका, एक्स लुकअप बिल्कुल काम कर रहा है। अब मैंने जाकर के अभी जो एग्जांपल दिया, एक कॉलम इंसर्ट कर दिया यहां पे लास्ट ईयर मार्क्स के लिए, यहां पे 0 हो गया, ये स्टिल इट्स वर्किंग। इवन मैंने मार्क्स को उठा के, सपोज करो ये मार्क्स उठाए, कंट्रोल X किया और इसको नीचे लिख दिया, स्टिल एक्स लुकअप इज वर्किंग। बट ये वी लुकअप जो है ना, तो काम ही नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता वी लुकअप तो, क्योंकि उसके सामने नहीं है। यहां पे स्टिल इट इज वर्किंग। मैं दूसरी सीट पे ले गया, सपोज करो इस पूरे कॉलम को उठाया, कंट्रोल X किया और दूसरी सीट पे ले गया। अब जाकर के देखता हूं मैं, स्टिल एक्स लुकअप इज वर्किंग। तो एक्स लुकअप जो है, और ये जो है, पहले एक फॉर्मूला होता था वी लुकअप और एक एच लुकअप। अगर आपको टॉप टू बॉटम देखना है देन you need separate formula. But XLOOKUP is capable of giving you the result left to right, right to left, top to bottom, bottom to top. Any direction, it is capable for giving you the result. Even you can do two-way lookup, three-way lookup with the help of दिस एक्स लुकअप। बट वो टॉपिक हमारा काफी लंबा हो जाएगा अगर हम उस पर जाएंगे। तो उसके लिए अगर एक्स लुकअप आपको अगेन भाई आपको करना है, तो कई जैसे मास्टर क्लास हमने आज केवल ओवरव्यू टाइप की मास्टर क्लास है, बट एक्स लुकअप की मास्टर क्लास मेरे जैसे यूट्यूब चैनल उस पे वेबसाइट पे है कि एक्स लुकअप को 3 घंटे तक हमने केवल एक्स लुकअप पे एक सेशन किया, तो उसमें डीप डाइव कर रखी है। तो वो आप भाई वहां पे आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह से कोर्स है मेरे कई, बेसिक टू एडवांस, पावर क्वेरी, पावर BI, तो वो वहां से आप कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, कोई चीज आपको प्रैक्टिकली देखनी है, करनी है, कोई 20 घंटे का कोर्स है, कोई 25 घंटे का है, कोई 3 घंटे का है, तो लाइक दैट यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन भाई देख सकते हो कोई भी, जो भी आपका इंटरेस्ट हो। तो एक्स लुकअप आपका ऐसे काम करेगा। एक नई चीज आ गई एक्स लुकअप में, वी लुकअप ऑलवेज गिविंग द फर्स्ट रिजल्ट। अगर मनीष मेरा 2 बार आ गया तो यहां पे मेरे पास, मैं एक बार इसको कंट्रोल Z कर देता हूं, ये आ गया। अब अगर मेरे पास मनीष यहां पे भी है और मनीष यहां पे भी है, और सपोज ये मेरी है प्राइसिंग,
प्राइस लिस्ट है कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और वहां से मेरे को प्राइसिंग लेनी है। ये मैं इसी को करता हूं कि ये मेरे प्राइस है। तो मेरे को चाहिए लेटेस्ट प्राइस क्या है, मतलब मनीष जो है इस प्रोडक्ट की लेटेस्ट प्राइस क्या है, तो दैट इज 99, बट इट इज गिविंग मी 42। तो एक्स लुकअप इज गिविंग कैपेबल ऑफ गिविंग यू वेदर यू वांट रिजल्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप और स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम। ये कैपेबिलिटी और है इसकी एक्स लुकअप की। बाय डिफॉल्ट ये वी लुकअप की तरह ही देगा, बट जब इसके अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे, कि यहाँ पे आप गए और आपने कहा कि मैच मोड, इसको भूल जाते हैं। नेक्स्ट है सर्च फर्स्ट टू लास्ट या सर्च लास्ट टू फर्स्ट। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टू लास्ट, आपने कहा लास्ट टू फर्स्ट। अब की बार मैंने इसको एंटर किया तो ये देखिए इसने मनीष की वैल्यू 99 दे दी कि मनीष यहाँ पे लास्ट में आ रखा है। और अगर मनीष फिर मेरा यहाँ पे नीचे आ गया, इसके बाद आ गया, तो वो दे देगा, उसकी वैल्यू दे देगा। और मनीष को मैंने बीच में डाल दिया यहाँ पे एक और ये लास्ट वाले की जगह विजय डाल दिया, तो अब ये 92 वैल्यू देगा। तो एक्स वी लुकअप इज नॉट capable of giving you last price from bottom, but XLOOKUP is capable of giving you the last price। आपको बैलेंस निकालना है, बैंक का बैलेंस निकालना है। जैसे आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन है बैंक स्टेटमेंट में, 1 तारीख को बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, 5 को ट्रांजेक्शन है, 20 को ट्रांजेक्शन है। अब आपको देखना है 1 का बैलेंस क्या था, 5 का बैलेंस क्या था, 10 का बैलेंस क्या था। आप वी लुकअप से कभी भी नहीं निकाल सकते, बट एक्स लुकअप के थ्रू आप 1 सेकंड के अंदर अपने हर डेट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल में बता रहा हूं कि वी लुकअप और एक्स लुकअप का क्या है, जो डिफरेंस मैंने बताया। तो ऐसे एक्स लुकअप में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। अगेन उसके लिए डीप डाइव चाहिए, हमारे को टाइम चाहिए कि एक्स लुकअप के ऊपर हमारे को 2 घंटे का सेशन करना है। तब मैं आपको उसके 10 सिनेरियो दिखा सकता हूं कि देखो प्रैक्टिकली ये इससे पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ, लाइक दैट। डायनामिक टू वे जैसे करना है कि मेरे को वी लुकअप ये एक्स लुकअप इधर से भी देखे, इधर से भी देखे, या इधर से भी देखे, मतलब नेम बीच में है, लेफ्ट से भी देखे, राइट से भी देखे और टॉप से भी देखे। तो दैट ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल। हमारे पास आधा घंटा और है, तो 1-2 फॉर्मूले और मैं दिखाता हूं आपको। एक नया फॉर्मूला आया है, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला आया है, स्टैकिंग। कि मेरे को स्टैक करना है किसी चीज को, कि मेरे पास ये अलग अलग टेबल्स हैं, डेटा है मेरे पास, अलग अलग सीट्स है, जनवरी का डेटा है, फरवरी का डेटा है, अलग अलग सीट्स में डेटा है, अलग अलग क्वार्टर का डेटा है, या अलग अलग मेरी ब्रांच का डेटा है। और उन सब के बेस पे मेरे को, इस डेटा के बेस पे आई वांट कि मेरे हु आर द टॉप टॉप परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर्स, कि 3 सबसे ज्यादा सेल वैल्यू देने वाले मेरे कौन लोग हैं। और मेरे पास ऐसे 25 सीट्स हैं, 25 मेरे डिपार्टमेंट्स हैं, या 25 मेरी ब्रांचेज हैं, अलग अलग डेटा है मेरा। तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं उसमें से टॉप 3 निकाल पाऊं। क्या करोगे आप उसके लिए? आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे कि इसको कॉपी करोगे, अगर निकालना भी है कंट्रोल C करके इसको कंट्रोल V करोगे यहाँ पे, फिर इसको दूसरे को कंट्रोल C करोगे, इसके नीचे ले जा करके कंट्रोल V करोगे, फिर आप तीसरे को करोगे कंट्रोल C और इसके नीचे ले जाकर फिर आप इसको कंट्रोल V करोगे यहाँ पे। अब इन तीनों को कंट्रोल V करने के बाद फिर इसको आप सॉर्ट करोगे, किसके बेस पे? अमाउंट के बेस पे। और फिर उसमें से जो निकल करके आएगा उसको आप टॉप 3 निकाल के बाकी रो को डिलीट करोगे। बट एवरीथिंग इज मैनुअल। इन केस योर डेटा इज गोइंग टू चेंज, आपका ये तो चेंज नहीं होगा। अगर बीच में सेल शेयर मार्केट की तरह पता लगा जी यहाँ पे राहुल जी की जो सेल है वो आ गई 10 लाख, 1 लाख, तो यहाँ पे थोड़ी आ जाएगा राहुल, उसकी वैल्यू थोड़ी आ जाएगी टॉप पे। रियल टाइम आपको चाहिए, तो ये सब चीज पॉसिबल है अब एक्सेल के थ्रू, रियल टाइम पे पॉसिबल है। हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, लेट्स सी। तो मैंने क्या किया, देयर इज ए फॉर्मूला वी स्टैक। मैंने यहां पे जाकर के इसको कहा कि स्टैकिंग कर दो इसकी, दूसरी स्टैकिंग कर दो इसकी, तीसरी स्टैकिंग कर दो इसकी। तीनों रेंज मैंने दी और एंटर मार दिया, ये पूरी की पूरी रेंज में मेरी इकट्ठी हो गई। अब मेरे को पता है कि यहां पे एक फॉर्मूला था मेरा सॉर्ट, मैंने इसको जाकर के सॉर्ट बोला, कौन से कॉलम पे सॉर्ट कर दो?
सेकंड पे, और किसके बेस पे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे मैंने किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी आ गया। अब मेरे पास इकट्ठे भी हो गए और शॉर्ट भी हो गए। अब अगर मैंने यहां पे नाम चेंज किया, मैंने यहां पे नाम डाल दिया विजय अग्रवाल और सेल डाल दी उसकी 51,000, तो देखिए विजय अग्रवाल ऑटोमेटिकली केम ऑन द टॉप। अगर मैंने राज मैथानी की जगह इसके नीचे डेटा डाल दिया, यहां पे मयंक भोला, अब की बार मैंने सेल डाल दी उसकी 60,000, तो देखिए मयंक भोला यहां पे आ गया, ये स्टेबल में है, ये इसमें है, लेकिन अपने आप से आ गया। अब आपको चाहिए कि मेरे को तो यहां पे टॉप 3 चाहिए। बॉस को बोल दिया, कभी बॉस को 3 चाहिए, कभी 5 चाहिए, कभी 10 चाहिए, कभी एक ही चाहिए टॉप। उसके लिए क्या करें? तो माइक्रोसॉफ्ट हैज गिवन वन मोर फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज टेक। टेक क्या करेगा? अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मैं इसको बोलता हूं टेक, मेरे को 3 रो ही चाहिए, तो ये मेरे को 3 रो दे देगा। 2 चाहिए तो 2 दे देगा। तो मैंने क्या किया, सॉर्ट के बाद यहां पे एक फॉर्मूला और लगा दिया, टेक। मैंने कहा ये डेट सब काम करने के बाद पहले विस्टैक करे, उसके बाद सॉर्ट करे, और उसमें से जो करने के बाद आई वांट टॉप 3, मेरे को 3 डाटा दे दे। तो जैसे मैंने किया, अब ये टॉप 3 दे दिए। अब बॉस को चाहिए टॉप 5, टॉप 5 आ गए, टॉप 2, टॉप 2 आ गए। कौन आया? मयंक विजय। इसकी जगह पे मैंने कहा नहीं, मेरे को राजीव, और उसकी जो वैल्यू आई 99,000, तो देखिए 99,000 राजीव यहां पे आ गया। अब अगर मैंने 3 दे दिए, तो देखिए मयंक भी आ गया, विजय भी आ गया। मैंने मयंक की वैल्यू चेंज कर दी, यहां पे 60,000 की जगह 55, गायब। तो रियल टाइम पे आपका ये काम कर रहा है। क्या मैंने डिस बनाई? आई मेड ए डिस, स्टैकिंग, वी स्टैक, सॉर्टिंग, सेकंड, एंड थर्ड इज टेक। अब आप कहोगे कि ये तो मेरा टॉप दिया, तो मैंने बॉस को बोल दिया कि आप अगर टॉप चाहोगे तो टॉप आएंगे, बॉटम चाहोगे बॉटम आ जाएंगे। तो मैंने यहां पे एक वैलिडेशन बना दी इसके अंदर, कि यहां पे जाओ और यहां पे जा करके वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, और मैंने कहा लिस्ट, और इसमें जाकर के कहा कि आपको बॉस क्या चाहिए, टॉप चाहिए या बॉटम। तो बॉस ने को मैंने बोला अगर आप यहाँ पे टॉप चूज करोगे तब तो टॉप आएंगे, टॉप आ रहे हैं। अब मैंने कहा मेरे को बॉटम चूज करना है, बॉटम नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सॉर्टिंग अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो मैंने -1 की जगह यहाँ पे लिख दिया एक फॉर्मूला, इफ, पुराना फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे A5 इज इक्वल टू टॉप, अगर यहाँ पे टॉप लिखे तब तो ये -1 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करे, अदरवाइज असेंडिंग ऑर्डर में ये करे, और एंटर मार दिया। अब बॉटम किया तो बॉटम पे सॉर्ट हो गया। अब अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया लोकेश और वैल्यू डाल दी 1, तो लोकेश इज ऑन द टॉप। और अब अगर मैंने बॉटम की जगह यहाँ पे कर दिया टॉप, फिर टॉप वैल्यू आ गई, राजीव इज ऑन द टॉप। 3 की जगह 5 चाहिए तो 5 आ गए, 5 की जगह 10 चाहिए तो 10 आ गए। जो भी मैं वैल्यू चाहूंगा ये वैल्यू मेरे को दे देगा। ये मेरा डैशबोर्ड बन गया। और ये जो फाइल है, और ये फाइल अभी तो मेरी सेम फाइल है, देर मे बी आई एम हैविंग 10 फाइल्स, मे बी आई एम हैविंग पीडीएफ फाइल्स। तो मैं एक्सेल को ये भी बोल सकता हूं कि वो पीडीएफ फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करे, फोल्डर में से लेकर के उसको क्लीन करे, क्लीन करके उसको स्टैकिंग करे, स्टैकिंग करके उसको सॉर्ट करे, सॉर्ट करके उसमें से टॉप ये वैल्यू निकाल दे, और साथ में एक चार्ट भी बना दे। ये सारे काम मेरे रियल टाइम पे हो सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी रियल टाइम। एक्सेल इज कैपेबल ऑफ डूइंग सच टाइप ऑफ थिंग्स। दैट इज ऑटोमेशन, कि आपका जो काम है एनालिसिस का काम होना चाहिए। वट एवर टास्क यू आर डूइंग, दोज थिंग्स यू गिव टू द एक्सेल। और अब जो चैट जीपीटी आ गया, आपका को पायलट आ गया, उसके कारण तो यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। मल्टीपल थिंग्स क्या कर सकते हो, कि अभी बिकॉज टाइम हमारा काफी स्पीड से जा रहा है, तो थोड़ा सा मैं को पायलट के बारे में दिखाता हूं आपको, कि आपके पास ऐसी कोई डेट्स हैं, जनवरी 1, 2026, आपके पास डेट है 1 फेब्रु, डॉट यहां पे कोमा, यहां पे डॉट, यहां पे ये 2025, यहां पे डैश
March 30, यहाँ पे 12, 12 अप्रैल, एक में डैश एक में डॉट। अब इन सब को आपको कन्वर्ट करना है किसी DMY फॉर्मेट में। कैसे करोगे आप बताओ? एनीबडी? कन्वर्ट इट टू प्रॉपर डेट विच एक्सेल अंडरस्टैंड्स इन DDMMY फॉर्मेट। इज इट पॉसिबल? ऐसे मेरे पास हजारों रोज हैं। यस, मयंक, लोकेश, एनीबडी एल्स? कोई बता सकता है हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? गईज? अलग अलग है सर, जो काम नहीं आएंगे, फॉर्मेट सेल, डेट फॉर्मूला, ये सब काम नहीं आने वाले सर। फ्लैश फिल। तो फिर कैसे होगा? तो ये फिर बताइए। थोड़ा बहुत करने से तो पावर क्वेरी से हो सकता है सर। पावर क्वेरी से कैसे हो जाएगा? पावर क्वेरी में जब डेटा मेरे पास है ही कहीं पे कोमा, कहीं पे स्पेस, तो कुछ राइट। कल को कोई और आ जाए डेटा, तो कैसे कर देगा वो? राइट। आप लोकेश जी, बताइए सर। नवीन भटिया जी को एक बार, नवीन भटिया जी को अनम्यूट कीजिए, वो आंसर देंगे। नहीं हाँ नहीं, जी। वो तो बोल रहे हैं यस इफ यू आर सेइंग, मतलब आप बोल रहे हैं तो होगा ही डेफिनेटली। वो तो ये बोल रहे हैं शायद। हम्म। तो ये जो चीज है ये पॉसिबल नहीं है एक्सेल के अंदर। अब इसके लिए आपको ChatGPT या आप उसको हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, ये को पायलट की। लेकिन अब उसके लिए आपको इस डेटा को उठा के को पायलट में कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करोगे फिर वहां से डेटा को उठा के यहाँ पे वापस लेके आना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे डेटा चेंज हो गया सपोज करो, तो रियल टाइम पे ये चेंज हो गया, तो ये चेंज फिर नहीं करेगा वो। फिर अगेन आपको वो सारी करनी होगी। तो अभी क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने, एक पेड बेसिस पे को पायलट का एक उसने वो दे दिया, फॉर्मूला फॉर्मूला ही दे दिया उसने को पायलट। उसने कहा कि आप एक फॉर्मूला ले लो मेरे से, इक्वल टू को पायलट। फॉर्मूले का नाम है को पायलट। बट कि पेड होगा ना आपका वर्जन, अगर आपने लाइसेंस ले रखा होगा तो ये काम करेगा को पायलट डायरेक्टली। तो मैंने इसको कहा को पायलट में प्रॉम्प्ट पार्ट 1। तो मैंने कहा कि क्या करना है, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया कि ये जो I1 में लिखा हुआ है इसको समझो, कन्वर्ट इट टू प्रॉपर डेट विच एक्सेल अंडरस्टैंड्स इन DTMMY फॉर्मेट। ये कर दिया। और फिर मैंने इसको कहा रेंज क्या दी इसके अंदर, कि ये है प्रॉम्प्ट पार्ट 1 और कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मेरा ये हो गया। तो बस मैंने इसको एक्सेल को बोल दिया कि ये चीज लो आपको पायलट जी, I1 में जो मैंने लिखा हुआ है, जैसे हम उसके अंदर देते हैं ना प्रॉम्प्ट एक्स, वेब पे जा करके, तो वेब पे नहीं जा रहा मैंने इसको बोला को पायलट में जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और इस रेंज पे H2H7 को और कन्वर्ट करके मेरे को डेटा दे दीजिए। अब मैं जैसे इसको एंटर मारूंगा, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये बिजी हो गया। अब ये वेब से कनेक्ट हो गया उससे को पायलट से, और इसने जा करके ये डेटा को कन्वर्ट करके और इसने मेरे को रिजल्ट दे दिया। अब अगर मैंने यहाँ पे जा करके कोई चेंज कर दिया, अब अगर मैंने यहाँ पे जा करके इसको चेंज कर दिया कि ये जो है Feb.1 की जगह यहाँ पे -1 कर दिया, और ये फैब की जगह यहाँ पे फेब्रू रही, ये मैंने ऐसे डाल दिया, February.25 की जगह 2025 ऐसे डाल दिया, और एक की जगह यहाँ पे डाल दिया मैंने 28, कुछ ऐसे डाल दिया मैंने। और अब मैं एंटर कर देता हूँ, ये यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं। देखो जी, कुछ हुआ ठीक? तो ये आपका को पायलट काम कर रहा है डायरेक्टली यहीं पे। को पायलट I1 में जो लिखा हुआ है उसको ये मेरे को कर रहा है। अब मैंने इसको यहाँ पे बोल दिया प्लीज गिव मी मंथ ओनली फ्रॉम दिस डेटा इन DDD फॉर्मेट, नहीं MMM फॉर्मेट। ये मैं इसको बोल रहा हूँ और इसको एंटर मार रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देख रहे हो? एक दो हाँ जी। डाउट ले लेते हैं सर, डेफिनेटली इसमें बहुत सारे डाउट है। सबसे लास्ट वाला पहले, कैन वी यूज चैट जीपीटी फॉर एक्सेल? जो होम में एक्सेल एड इन है वो भी तो हाँ है हाँ, सर एक। होम में
नहीं नहीं, वो एड इन तो वो सब ऐसे नाम के हैं, कोई खास ऐसा नहीं करेंगे। अब जब तक आप पेड वाला चीज नहीं करोगे ना इसमें, अभी तो इसमें काम नहीं करेगा, कुछ जगह पे काम कर जाएगा। कि अब आप इसके थ्रू, जैसे को पायलट के थ्रू, मैं तो अभी आपको जरा सा दिखाया है। अब आपका सपोज करो ऐसा कोई डाटा है आपका, ये देखिए, ये डाटा आपका किसी ने दे दिया। अब आपको किसी ने दिया कि इस डाटा में इसके नीचे आपको ईस्ट चाहिए, इसके नीचे बैटमैन चाहिए, इसके नीचे एप्पल चाहिए, और ऐसा आपका बहुत सारा डाटा है। अब आप चाहते हो कि ये कन्वर्ट कर दे मेरा पूरे डाटा को अपने आप से, अदरवाइज तो मैनुअल करेंगे, कोई और लॉजिक लगाएंगे। लेकिन आप इसको बोलिए एक्सेल को कि भाई ये आप मेरे को काम करके दे दो, तो दे देगा आपके लिए करके। प्रॉम्प्ट इसको दे दीजिए और इसको ये करके दे देगा आपको। एक एक हम लोग को कॉमन प्रॉब्लम आता है सर, डिस्कस करना चाहूंगा इसी हाँ तरीके का। जैसे स्टेटमेंट जब हम लोग को आता है बैंक स्टेटमेंट, तो वो क्या होता है कि डेट एक में आ गया, नरेशन कभी कभी 2 लाइन, कभी 3 लाइन, या पार्टिकुलर्स, या फिर 3 लाइन बाद एक डेट आया, फिर दो नरेशन आया 2 लाइन का, कभी 1 लाइन। तो वो उस तरह का कुछ अगर आप बता सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो चीजें जो है ना भाई, कितना आप उसके साथ प्ले करोगे, कितना आपके पास पेशेंस है, सब चीज कर सकता है। जैसे कि आपके पास ये डाटा है, ये हाँ देखिए, राइट। अब इसमें नरेशन दो, कभी 2 लाइन, कभी ये 3 लाइन, ये इस टाइप का। ये नहीं, इसमें देखो ये कस्टमर आईडी है, ये इनवॉइस डिटेल्स है। अब ये इनवॉइस डिटेल्स में क्या है, ये इनवॉइस नंबर है पहले तो 721, ये मेरी अमाउंट है, ये जनवरी मंथ, फिर इसके बाद फिर आ गया। किसी के अंदर दो है, किसी में 3 इनवॉइस है, किसी में 4 इनवॉइस है, किसी में। अब मेरे को इसके अंदर क्या चाहिए कि ये जो कस्टमर आईडी है मेरी, जो यहाँ पे, इसके बेस पे मैं ये चाहता हूं कि ये ऑटोमेटिकली इसको ऐसा कर दे जिसके बेस पे मैं पिवट बना पाऊं, जिसके बेस पे मैं फिल्टर कर पाऊं। ऐसे करके मेरे को कोई डाटा दे दे कि ये मेरी कस्टमर को मैंने 4 इनवॉइस सेल किए, इस कस्टमर को मैंने 2 इनवॉइस सेल किए, किसी को एक किया। तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना है डाटा को इस फॉर्मेट में, कि मेरे पास एक जगह पे कस्टमर आईडी आए, एक जगह पे इनवॉइस नंबर आए, एक जगह अमाउंट आए, और एक जगह पे मंथ आए। ये मेरे को काम करना है। तो ये वैसे ही हो गया ना जैसे आप बोल रहे हो। तो आप उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट दोगे तो उसको भी कर देगा वो ठीक। तो ये काम एक्सेल कर सकता है इसको, को पायलट, बिना कोई फॉर्मूले के। बस एक्सेल को बोलिए, जैसे आप मेरे को बोलते हो कि मेरे को ऐसा चाहिए, वही चीज आपको एक्सेल को उसको बोलनी है, को पायलट को, वो करके दे देगा। जैसे 365 का तो लाइसेंस खरीद रहे हैं, उसके अलावा कोपायलट का अलग से है क्या सर? अलग से लेना पड़ेगा इसके लिए। ओह, ठीक ठीक है सर। तो वो बैंक स्टेटमेंट वाला भी फिर कोपायलट से ही होगा, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं, डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली तो फिर आप अगर मेरे को दोगे तो मैं एक्सेल के अंदर उसका आपका कोई टेम्पलेट बना के मैं दे दूंगा आपको, फॉर्मूले के थ्रू भी। और आप जैसे ही डाटा डालोगे, आपका चाहे 10 लाइन हो, चाहे आपकी 2 लाख लाइनें हो, विद इन सेकेंड आपको जैसे फॉर्मेट में चाहिए वैसा डाटा कन्वर्ट हो जाएगा आपका, बिना को पायलट के। मैं कुछ लॉजिक लगाऊंगा, जैसे 2 फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले, आपकी 3 लाइनें हो, चाहे दो हो, चाहे पांच हो, जो भी आप मेरे को डाटा दोगे कि मेरा डाटा ऐसा रहेगा और इसके बेस पे ऐसा कन्वर्ट कर देंगे, तो वो कर देगा कन्वर्ट। राइट, गॉट इट। वो मतलब बहुत सारा लॉजिक्स और फॉर्मूलाज मिक्स करके ही होगा, हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे अभी नहीं, तो वो आपको मिक्स नहीं करना ना भाई, आपको गाड़ी चलानी है कि गाड़ी बनानी है, अब वो आपने डिसाइड करना है। अगर आपको बनानी है तो ऑब्वियसली बात है, उसके लिए मेहनत करो, इंजीनियरिंग करो, उसकी प्रैक्टिस करो, रिसर्च करो, तो आप बना लोगे। एक आपने है कि बस ड्राइविंग सीखी आपने, तो आपने तो भाई ढूंढ लिया लोकेश को, आपने ढूंढ लिया विजय अग्रवाल को, आपने ढूंढ लिया बैंक को, और आपने बोला जी मेरे को तो ये चाहिए, बनी बनाई रसमलाई चाहिए। तो आप गए दुकान पे और लेकर के आ गए बस। अब आपको क्या पता कि उसने कितनी देर उसको गर्म करना है, रात को भिगोना है कि सुबह भिगोना है, 2 घंटे भिगोना है, क्या करना है, ये तो आपको डिपेंड करेगा। तो आपने मेरे को डाटा दिया, मैंने आपको टेम्पलेट बना के दे दिया, आपने बस डाटा डाला, आपको रिजल्ट आ गया। राइट। अभी मैंने एमएसएमई के लिए एक प्रोग्राम बनाया, मतलब फीफो बेसिस पे, जैसे। तो यही मेरा जो काम है, जैसे मैं लोगों के लिए जो भाई बना करके देता हूँ जैसे चीज़ें, तो फीफो बेसिस पे मैंने अभी रिसेंटली मैंने ये एक बनाया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट में बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स के लिए बनाता रहता हूँ जैसे। तो वो क्या करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई इजी है, बट आपको पता है उसके लॉजिक। हो सकता है 50 फॉर्मूले लगाए, आपको वो सारी चीज आनी चाहिए, तब जा करके वो हो पाएगा। तो मैं दिखाता हूँ, बड़ा ब्यूटीफुल बना है। कई भाई सीए फर्म उसको यूज कर रही हैं, जो ये बनाया मैंने।
ये देखिए FIFO। अब इसके अंदर जो है ये लाइक कैसे काम करेगा, ये देखिए। ये देखिए इसमें आप डाटा इनपुट दोगे कि आपके पास जितना मर्जी डाटा हो, जितने मर्जी वेंडर्स हो, एंड यू कैन गिव कि आपके इनवॉइस क्या है, रिसिप्ट क्या है। कि राम को आपने 10,000 रुपये का कोई इनवॉइस वैल्यू थी, ये इनवॉइस नंबर था, 20 अप्रैल को दिया, फिर उसकी पेमेंट आ गई 1,000 रुपये, फिर आपने 21 अप्रैल को किया। तो अब आप इसमें चाहते हो कि फीफो बेसिस पे आपका स्प्लिट हो जाए और 1 to 1 ये हो जाए कि 45 डेज में वेदर यू गोट द पेमेंट और नोट फॉर ईच एंड एवरी इनवाइस। और कहीं पे अगर आपका डिले हुआ है तो कैसे हुआ है। अब आपको अगर फीफो बेसिस पे करना होगा और आपके 1,000 वेंडर्स हों, किसी में ट्रांजेक्शन 10 हैं, किसी में आपके 1,000 ट्रांजेक्शन है, यू आर हैविंग लैक्स ऑफ ड्रोज। तो हाउ इट इज पॉसिबल, इट कैन टेक हेल ऑफ टाइम without accuracy, without like confidence. But once you are having like such type of template with the help of Excel, कि आपने बस यहाँ पे डेटा डाला, ये इनवॉइस का डेटा, ये रिसिप्ट का डेटा है, इमीडिएटली आपको फाइनल आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जैसे राम को पहला इनवॉइस मैंने क्या दिया, 10,000 का, पहली पेमेंट क्या आई, 1,000 रुपीज की। तो ये क्या करेगा, 10,000 को स्प्लिट करेगा, ब्रेक करेगा 1,000 और 9,000 में, 1,000 के अगेंस्ट में 1,000 ये आ जाएगा। फिर अगला जो इनवॉइस आएगा, वो मेरा इनवॉइस कितने का है, लेट्स सी, मेरा 20,000 रुपये का। तो ये क्या करेगा, फिर 9,000 जो है और 20,000 को स्प्लिट करेगा 16,000 एंड 4,000, 9,000 और 16,000 को फिर इससे पेमेंट करेगा ये, 9,000 और 16,000। और पेमेंट कितने की आई, वो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पेमेंट जो है, पहली पेमेंट आई 1,000 रुपये की, फिर आई 15,000 रुपये की, तो 15,000 को स्प्लिट करेगा वो। तो लाइक दैट ईच एंड एवरी पेमेंट एंड ईच एंड एवरी इनवॉइस जो आपका रिमेनिंग होगा, दैट इज योर पेंडिंग। और इससे आपका मैच भी कर जाएगा। 95,000 वाज द इनवॉइस अमाउंट, 81,000 द पेमेंट। सो 95,000, 81,000 लाइन को इसने स्प्लिट किया। बैलेंस जो बचा राम की जो टोटल थी 60,000 रुपये डेबिट और 41,000 क्रेडिट, तो 19,000 उसका ये बच गया। 30,000 वाले इनवॉइस की 19,000 इज पेंडिंग। 21 अप्रैल का ये इनवॉइस है। वट इज द डिले फॉर द कलरिंग ऑफ द पेमेंट। अब ये सब कुछ रियल टाइम पे चल रहा है। अब अगर मैंने इसमें से जा करके ये डाटा सपोज हटा दिया यहाँ पे और यहाँ पे केवल राम का ये रखा, 10,000 की जगह यहाँ पे मैंने 500, ये 550 डाल दिया एक बार। अब ये क्या करेगा, 1,000 को स्प्लिट करेगा 550 के हिसाब से। तो देखिए 1,000 को स्प्लिट किया 550 एंड 450, 550 से 550 को कवर किया। फिर अगली पेमेंट थी 15,000 की, 20,000 को स्प्लिट किया 450 में, क्योंकि यहाँ पे 450 रह गया था। फिर 15,000 में और फिर 4,550 में। दिस इज पेंडिंग 4550।
अगर आपने राम की जगह कोई दूसरा कर दिया वेंडर, यहाँ पे आपने कर दिया विजय, तो ये देखिए आप जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली विजय का ये पेंडिंग है, और अभी इसकी एडवांस पेमेंट आ गई, 550 की पेमेंट आई है, 450 और 15,000 आपका पेंडिंग चल रहा है यहाँ पे, ये एडवांस पेमेंट आ गई। तो ये आपका नंबर ऑफ डेज ब्लैंक है, मीन्स ये क्लियर ही नहीं हुआ। तो आप इसके बेस पे रिपोर्ट निकाल सकते हो कि जो ब्लैंक्स हैं दैट इज योर आउटस्टैंडिंग। तो लाइक दैट यू कैन मेक द स्मार्ट यूज ऑफ एक्सेल। अब अगर आपको आता है तो आप खुद बनाओ, नहीं आता है तो आप हेल्प लो एक्सपर्ट्स की, दैट इज द वे। तो ऐसे को पायलट के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सेल्स का डेटा, अब जैसे मेरे को, मैंने एक्सेल को बोला कि मेरे को कोई डेटा बनाना है, क्रिएट सम डमी डेटा फॉर ए शिपमेंट कंपनी सेल्स बुक अराउंड 100 रोज एंड 10 कॉलम्स, बस मैंने इसको एक्सेल को बोला कि मेरे को ऐसे कोई डेटा बनाना है, कंट्रोल C किया और एक नई फाइल पे गया। अब आपको डेटा बनाने में कितना टाइम लगेगा सोचो, और आपने जाकर के एक्सेल को ही बोल दिया कि प्लीज क्रिएट सम डमी डाटा फॉर ए शिपमेंट कंपनी सेल्स बुक 100 रोज, 100 की जगह आप इसको बोल दो नहीं मेरे को तो 50 रोज चाहिए, कॉलम्स की जगह 10 की जगह बोल दो 12 कॉलम्स डाटा चाहिए, और इसको एंटर मार दिया। अब ये क्या करेगा, बिजी हो गया, मेरे लिए डाटा क्रिएट करेगा जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। शिपमेंट कंपनी का अपने आप ढूंढेगा क्या कॉलम होने चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस उसका होगा, और आपके लिए डमी डाटा ये बना दिया इसने, ऑर्डर आईडी, और ये देखो इसने सारा डेटा बना करके आपको दे दिया, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, शिपमेंट डेट, ओरिजन, डेस्टिनेशन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, फिर आपकी टोटल प्राइस, स्टेटस क्या है, डिलीवर्ड, पेमेंट मेथड क्या है, डिलीवरी टाइम डेज कितने हैं, देख लो आप इसके, कॉलम कितने बनाए इसको काउंट कर लो, कितने कॉलम बनाए, 12। अब 12 की जगह आपने बोला नहीं नहीं 14 कॉलम्स चाहिए, आप 14 कॉलम्स बना लो। 50 की जगह आपने बोला नहीं मेरे को तो 100 रो चाहिए, 100 रो का डेटा बना देगा, अभी तो इसने 50 रो का बनाया, हो जाएगा काम। अब इसको फिर काम दे दिया, फिर बना देगा ये। तो को पायलट से बहुत कुछ लाइक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज कर सकते हैं। तो इसको काम करने देते हैं हम, तब तक कोई और चीज़ है, ये फिल डाउन है, ये फिल डाउन कर सकता है ऑटोमेटिकली। मेरे को कॉलम्स के नाम डालने A से लेके AH तक कैपिटल लेटर्स में लिख करके दे दो, तो इसने दे दिया मेरे को पायलट J1 कि J1 में जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको लिख करके दे दो मेरे को। यहाँ पे मैंने दिया गिव टॉप 10 इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स एवर इंडिया हैड एंड गिव द स्टैटिस्टिक्स एज पर द हेडर गिवन, जो मैंने हेडर्स दे रखे हैं उसके बेस पे उनकी स्टैटिस्टिक्स दे दो, सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए, अपने आप दे दिया इसने। तो ऐसे लाइक वी आर हैविंग सो मैनी वेज थिंग्स जो आपको करके दे सकता है। ये देखिए इसने बना दिया, इसने 14 कॉलम बना दी, 100 रोज बना दी, डिलीवर टाइप एयर ग्राउंड, नोट्स, ऑन टाइम, डिलेड, और ये देखिए 100 रोज। सर ये इसमें डाउट है अभी जैसे ये क्वेश्चन है, सर आई हैव अ क्वेश्चन, मेनी सीए फर्म्स यूज जोहो वर्कस्पेस बंडल पैकेजेस, हाउ टू टेक डिसीजन बिफोर सब्सक्राइबिंग ऑफिस 365 वर्सेस जोहो वर्कस्पेस, प्लीज गिव सम इनपुट और सजेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्सेस जोहो शीट्स। भाई देखो जोहो सीट पे मैंने काम नहीं किया है, आई डोंट नो कि व्हाट इज द लाइक फाइनल, लाइक उसका क्या आपको फंक्शनल क्या क्या है मतलब उसमें क्या फंक्शनलिटी। उसका वो देगा। अगर आपको रिजल्ट दे रहा है और सस्ता पड़ रहा है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप जोहो पे जाओ, और आपके काम ही पूरे नहीं हो और वो फ्री भी दे रहा हो तो किस लिए इंस्टॉल करना है आपको जोहो, बताइए। मेरे को नहीं पता ना, अब मेरे को अगर एक्सेल आता है, मेरे को अब कोई बोले कि अच्छा तुम गूगल सीट पे काम कर लो, गूगल सीट पे चले जाओ, मेरे को पता है ठीक है वो काम, बट आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ गूगल सीट। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा जो मेरे को आती है कि भाई मैं तो एक्सेल पे आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ, एक्सेल पे आप कीजिए, और उसमें एक्सेल में क्या सस्ता और कौन सा बढ़िया वर्जन है दैट आई कैन गाइड यू। बट जो हो भाई मैंने तो यूज किया नहीं अभी तक। बट इफ़ योर रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड और प्राइसिंग में अगर वो आपको लगता है सस्ता है तो ऑब्वियसली यू शुड गो विद द जो हो। So any more anyone is having doubts?
ऑलरेडी इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स सर। बहुत ही अच्छा सेशंस था, मतलब पता ही नहीं चला सर कैसे 2 आवर्स ऑलमोस्ट हो गए। नहीं, चीजें तो बहुत एक्चुअली क्या है भाई, एक तो होता है कि चीज भाई बनानी, अब अनपिवट करना है भाई, एक्सेल का फंक्शन है, स्प्लिट टेक्स्ट नंबर्स इनमें करना है। एक रिगेक्स फंक्शन आया हुआ है बहुत अच्छा, रिगेक्स जो कि लैंग्वेज है कंप्यूटर की। तो वो हम्म। रिगेक्स आपका एक्सेल में काम करता है डायरेक्टली। चूज कॉलम्स रोज है, कैसे वो आप कॉलम्स निकाल सकते हो अपनी चॉइस के, आगे पीछे कर सकते हो कॉलम। कोई भी कॉलम 2 बार रिपीट करना है, 3 बार करना है। आउट ऑफ 100 कॉलम्स आपका डेटा एसएपी से एक्सट्रैक्ट किया, 100 कॉलम है, बट यू नीड ओनली 4 कॉलम्स। अब आपको वो कॉलम ढूंढने में, कॉपी पेस्ट करने में टाइम लग जाएगा, बट एक्सेल इजीली आपको 1 सेकंड में करके दे देगा, रियल टाइम पे। आपके कॉलम चेंज होंगे फिर भी करके दे देगा। जो कॉलम चाहिए आपको हेडर के बेस पे कॉलम निकाल के दे देगा, कि मेरे 100 कॉलम्स वो ढूंढ के दे, जहां पे भी प्रोडक्ट लिखा हो, उसकी क्वांटिटी हो, डेट हो, बस ये 3 कॉलम निकाल के दे दे मेरे को, दे देगा वो आपको। आपकी जितनी मर्जी रो हो, और उसके निकाल के फिर आपकी जो रिपोर्ट चाहिए, वही तो ऑटोमेशन है। कि आपने कितना भी कॉम्प्लेक्स चीज दी और वो कर दिया। अब जैसे एक्सेल का फाइनेंशियल ऑटोमेशन, भाई यहाँ पे ज्यादातर आई बिलीव फिनांस के लोग होंगे आप यहाँ पे। हाँ सर, एम आई मैक्सिमम राइट? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हाँ, तो इसमें क्या है, जैसे एक मेरा जो है ना, ये कि एक्सेल का मैं जो है ना ऑटोमेशन का, जो मैं लोगों के लिए मैं बताता हूँ कि काम करता हूँ, तो उसमें एक छोटा सा मतलब उसकी अगर देखेंगे तो आउट ऑफ 100 कॉम्प्लेक्सिटी 2% होगी मुश्किल से। बट आप उसको 2% वाली चीज को देखोगे तो आप सोचोगे कि यार 100 वाला तो पता नहीं क्या होगा जैसे। तो यहाँ पे आप देखो, तो इस टाइप के आप फाइनेंशियल डैशबोर्ड बना सकते हो उसके थ्रू, कि मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन। तो यहाँ पे आपकी ये चीज है। तो ये आप मतलब एक्सेल को आई वांट कि आपका बस काम जो है ना एक्सेल में, एनालिसिस के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। कितना भी कॉम्प्लेक्स काम हो आपका, अगर उसमें आपको 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा काम करने में लग रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग एक्सेल एफिशिएंटली। अब जैसे ये है फाइनेंशियल डैशबोर्ड। अब आपका डेटा है, यू आर हैविंग डेटा, मल्टीपल कंपनीज यू आर हैविंग, या मल्टीपल ब्रांचेज यू आर हैविंग। और आपका जो डेटा है, जैसे सपोज करो आपके 10 कंट्री हैं, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी। यू आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स, अलग अलग महीने का डेटा है, अलग अलग जीएल कोड्स हैं आपके। आपका एक्चुअल फोरकास्ट भी हो सकते हैं। अमाउंट लोकल करेंसी में है, कनाडा का कनाडा की करेंसी में, यूएस का यूएस की करेंसी में, इंडिया का आईएनआर में, दुबई का आपका यूएई करेंसी में। अब उसका आपको फाइनेंशियली आपको रिपोर्ट देनी है मैनेजमेंट को, या आपको शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट बनानी है, ब्रांच वाइज बनानी है, क्वार्टर वाइज बनानी है, मंथ वाइज बनानी है, कंपैरिजन करना है, एक्सेप्शनल आइटम्स देखने हैं। किसी को थाउजेंड्स में देखनी है, किसी को आपको यूएस की करेंसी में देखनी है। बस आपका ये डाटा है। इन फ्यूचर यू आर हैविंग योर मोर डेटा, जस्ट यू कॉपी दिस डेटा। और ये डेटा मे बी योर फाइल्स, कि आपकी यहाँ पे ना होके आपके फोल्डर में रखी है फाइल्स, या पीडीएफ की आपकी फाइल है, तो भी काम हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि आपको कब की रिपोर्ट देखनी है। आपने कहा जी मेरे को देखनी है रिपोर्ट केवल और केवल अगस्त 18 से लेके अगस्त 18, एक ही महीने की देख लेता हूँ। किस करेंसी में देखनी है? आईएनआर में आप ये चूज कर सकते हो। एब्सोल्यूट देखनी है, थाउजेंड्स देखनी है, एब्सोल्यूट देखनी है। अब यहाँ पे आप गए डैशबोर्ड, यहाँ पे आपकी रिपोर्ट आ गई। जितने भी आपके कंट्रीज है, आपको वर्ल्ड वाइड देखनी है, वर्ल्ड वाइड में ऑल देखनी है, ऑल सेलेक्ट किया। सारे आपके टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, एबिटा क्या हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना उससे इंक्रीज या डिक्रीज है कंपेयर टू लास्ट मंथ। ये आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आ गई, 2% चेंज है। अब आपने कहा नहीं नहीं वर्ल्ड वाइड नहीं देखना मेरे को तो देखना है चाइना का। चेंज हो गई रिपोर्ट। अब आपने कहा नहीं नहीं, मेरे पास एक मास्टर बना रखा है मैंने, और मैंने कहा इंडिया, चाइना, सिंगापुर, यूएई, ऑल दीज 5 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ एशिया। आई वॉन्ट द टोटल ऑफ दीज 5 कंट्रीज। मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाकर के मैंने कहा आई वॉन्ट ओनली फॉर एशिया। एशिया के अंदर चाइना नहीं देखना मेरे को, ऑल देखना है। तो ये 5 कंट्री आ गए, इंडिया, चाइना, बट आई सेड इन ऑल। तो नव दिस इज द टोटल ऑफ एशिया, ऑल 5 कंट्रीज। बट और कल को मैंने बोला मास्टर में कि नहीं नहीं, इसमें से चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ एशिया, दैट इज पार्ट ऑफ यूरोप। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूरोप किया,
अब वहाँ पे रिजल्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा, एशिया के अंदर मेरे कंट्री क्या है, 4 हैं, इंडिया, सिंगापुर, चाइना इज नॉट देयर। और ये जो टोटल आया है, दिस इज ओनली फॉर एशिया। कौन से महीने का? अगस्त का। अब आपने बोला नहीं नहीं अगस्त का नहीं, मेरे को तो पूरे साल का देखना है। चूज कर लो फ्लेक्सिबिलिटी, क्वार्टर चूज कर लो। आईएनआर नहीं देखना मेरे को, यूएसडी में देखना है। एक मास्टर मैंने बना दिया आपके लिए, करेंसी मास्टर। वो अपने आप से करेंसी मास्टर के जो रेट होंगे उसके बेस पे वो कन्वर्ट कर देगा अपने आप उस महीने का डेटा उस करेंसी में। अब आपने बोला कि यार डेटाबेस है, कल को मेरा नया जीएल आ गया तो क्या करेगा जीए? कि मैंने बोला कि यार यहाँ पे मैंने जा करके एक नया जीएल आ गया और मैंने बोला समोसा पार्टी, और ऐसा ये कोई जीएल आ गया। एक आ गया बर्गर पार्टी, और बर्गर पार्टी के जो जीएल है वो कई सारे आ गए मेरे। तो मेरे को कैसे पता कि बर्गर पार्टी को किस में डालना है, मेरा एक्सपेंस है कि बैलेंस शीट है, क्या है? ऑब्वियसली एक्सेल को तो नहीं पता। अब आपका मैंने क्या किया, एक कंट्रोल बना दिया। जब भी आपका कोई नया जीएल आएगा अपने आप यहाँ पे दे देगा वो कि आपका एक नया जीएल आ गया, समोसा पार्टी, बर्गर पार्टी। इसको आप मेंशन करो कहाँ पे डालना है। तो नाउ यू कॉपी दिस, कंट्रोल सी, और जाओ यहाँ पे मास्टर में, जीएल मास्टर, और यहाँ पे जा करके अब आपको एक्सेल को बताना है आपने कि ये जो है समोसा पार्टी, ये मेरे किसकी है? पीएल की पार्टी। ये मेरे किसकी है? बैलेंस शीट का। पीएल में कहाँ जाना चाहिए? स्टाफ वेलफेयर में, या जो भी आप। ये किस में जाना चाहिए? ये मेरा डिपॉजिट्स में, डेप्रिशिएशन, या मैंने बोल दिया इसके अंदर मेरा जाना चाहिए ये कैपिटल, कैश एंड बैंक बैलेंस। कुछ भी मैं डाल सकता हूँ। और कल को मेरी ग्रुपिंग 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। एक ग्रुपिंग ऑडिटर के लिए, एक ग्रुपिंग मैनेजमेंट के लिए, एक ग्रुपिंग शेड्यूल 6 के लिए। मेरे को शेड्यूल 6 की रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट शेड्यूल 6 की ग्रुपिंग के हिसाब से बना देगा। ऐसे में कल को कोई भी ग्रुपिंग बना सकता हूँ। कल को मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर पॉजिटिव फिगर आए तो मेरी जैसे इनकम आ गई, अदर इनकम, तो वो पॉजिटिव हो तो मेरी उसमें आए, रेवेन्यू में आए, या मेरी एक्सपेंस में आए। तो इनकम अगर डेबिट में है तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट है तो कहाँ जाएगी, तो वो भी मैं इसमें मेंशन कर सकता हूँ। तो इस टाइप से किया। अब मैं जाता हूँ अपने कंट्रोल अकाउंट पे, सब कुछ गायब। ये कह रहा है सब कुछ ठीक है, नो न्यू कंट्री नो न्यू जीएल। अब आपने कहा कि नहीं, मेरा नया डेटाबेस आया और इसके अंदर जा करके मैंने कहा एक नया कंट्री बनाना है। कौन सा कंट्री बनाना है? मैंने कहा कि जो कंट्री बनाना है मेरे को, और वो हम दे देते हैं कि मयंक भाई। मयंक का ये कंट्री बना दिया मैंने। अब वहां पे जा करके देखता हूँ मैं कंट्रोल के ऊपर कि मेरा कंट्रोल में ये कह रहा है न्यू कंट्री आ गया मयंक। उसका करेंसी नेम भी डिफाइन नहीं कर रखा है। तो मैं मास्टर में गया और यहाँ पे जा करके मैंने कहा मयंक, किस में कंट्री है ये? एशिया में। कौन सी करेंसी है? आईएनआर। अब मैं यहाँ पे जाऊँ कंट्रोल पे, गायब हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा डैशबोर्ड पे, एशिया के अंदर मयंक देखूँ आ गया क्या? आ गया। डेटा जीरो। क्यों जीरो? अगस्त का जो मैंने डेटा डाला है वो अप्रैल का है। तो मैं क्या करता हूँ, सारे कंट्री को, और इसमें एक चीज और भी है, बैलेंस शीट बना रखी है मैंने, इंडिया, चाइना, सिंगापुर सबकी। यहाँ पे मैंने पीएल भी बना रखा है, कंपैरिजन। अब मैंने जा करके डेटाबेस में क्या किया, इसको जो भी कंट्री थे सब पे केवल बैंक ही डाल दिया। जैसे ही सारे कंट्री पे बैंक किया, डेटा बोर्ड में डेटा आ गया बैंक का। बैंक की जगह यहाँ पे मैंने कर दिया इंडिया, जीरो हो गया। ऑब्वियसली डेटा ही नहीं है वहां पे। बैलेंस शीट में गया, यहाँ पे सब कुछ जीरो हो गया। पीएल में गया, सब कुछ जीरो, लेकिन बैंक का नहीं आया। मैंने इसमें एक और कॉलम भी इंसर्ट कर लिया। मैंने कहा सिंगापुर के साथ में कंट्रोल सी करके यहाँ पे इंसर्ट कॉपीड सेल्स, 2 सिंगापुर, इसकी जगह पे मैंने कहा मयंक। वाह जी वाह, आ गया डेटा पूरा मयंक का। हो गया ऑटोमेशन। आपके 2 कंट्री हो, 200 कंट्री हो, यूएस, आपने आईएनआर में नहीं देखना, यूएस डॉलर में देखना है, यहाँ पे जाके यूएस डॉलर कर दो। सो दिस इज द वे वी कैन ऑटोमेट, वी कैन यूज एक्सेल स्मार्टली। पीएल में करना है पीएल में हो जाएगा, जैसे भी आपको करना है वैसे आपका ये हो जाएगा। ये देखो। सो देर आर सो मेनी वेज लाइक वी कैन यूज डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट आपको पता हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, देन यू मस्ट यूज एक्सेल इन ए स्मार्टर वे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक अगर यू आपका सर। कोई क्वेश्चन है। चैट्स में तो बहुत सारे ऐसा, थैंक यू, सुपर्ब सर, ग्रेट, योर रियली लव विथ एक्सेल इज अमेजिंग।
एक्सेलेंट सेशन सर, काइंडली शेयर योर मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। ये तो मैंने बहुत जो सारे। फाइल दी है उसके ऊपर मेरी मेल आईडी भी है। और ये यस आप यस। नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चैम्प एक्सेल, गूगल पे आप सिंपल विजय और एक्सेल डालोगे, यू कैन फाइंड माय वेबसाइट, यू कैन फाइंड माय यूट्यूब चैनल। और सब कुछ आपको केवल एक्सेल और विजय लिखने से आपको मिल जाएगा। बहुत और बढ़िया सर। एक्सेल के अलावा मेरा एक और भी पैशन है। अगर इफ सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको पता हो नहीं पता हो, आई डोंट नो, आई एम ए योगा इंस्ट्रक्टर ऑल्सो, योगा टीचर ऑल्सो, एंड दैट आई डू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वाह। उसके लिए मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, चैम्प योगा। एवरी डे वी आर हैविंग आवर योग क्लास विदाउट नॉन स्टॉप फॉर लास्ट 5.5 years। देर इज नॉट ए सिंगल ब्रेक। एक दिन भी हमारी जो है 2100 क्लास हमारी हो गई है, आज तक एक भी ब्रेक हमारा नहीं हुआ है। बहुत अमेजिंग सर, अमेजिंग। सो और एनीवन। सारी हाँ चीजें बोलिए वहाँ पे सर। अवेलेबल है हमारी, चैंप योगा के ऊपर इवन हमारी इवन सारी किसी की क्यूरी भी हो ना सर, सैटरडे को एक एक्सेल की चौपाल लगाते हैं, बढ़िया चौपाल लगाते हैं एवरी सैटरडे। सर के 200 सेशन में भी होने वाले हैं अभी। तो चौपाल लगाते हैं, उस पे किसी की भी क्यूरी हो एवरी सैटरडे सर क्लियर करके देते हैं वो क्यूरी। ग्रेट। फ्रॉम विच सिटी सर इज। मैं दिल्ली से हूँ जी, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर से। और हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। बाकी सेशन तो मेरे, भाई मैं आई कीप ट्रैवलिंग। कभी सेशन होते हैं कॉर्पोरेट्स के, बेंगलोर, पुणे, मुंबई। मैंने भाई विजिट किया है, जैसे बड़ौदा है, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं। और सी इंस्टीट्यूट के काफ़ी प्रोग्राम्स मेरे हो रखे हैं। और उसके अलावा आई कीप विजिटिंग कुवैत, दुबई। एक्सेल की प्रैक्टिस है। और ज़्यादा मेरे प्रोग्राम्स में ना मेरे ऑटोमेशन के बहुत सारे काम होते हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स मेरे लिए वो मेरे से काम कराते हैं कि हमारा ये जो है ऑटोमेट कर दीजिए, जिसमें हमारी टीम को टाइम लगता है। तो मेन मेरा जो काम है वो ऑटोमेशन का है, और दूसरा ट्रेनिंग का है। यू उस पे वेबसाइट पे मेरे कोर्सेज भी हैं, जो आप रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो। डेफिनेटली सर, बहुत ही बढ़िया सेशन था। मतलब ऑलरेडी चैट्स में बहुत सारे कमेंट्स है सर। वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत मतलब पेशेंटली आपने समझाया सब कुछ, और थोड़ा डीपली भी बताया कई चीजें, जैसे फ्लैश फिल हो गया, और कि भाई कैसे क्या हुआ, एक एक आर्ग्यूमेंट आपने समझाया। सो एनीबडी एल्स हु वांट्स टू से एनीथिंग। मयंक जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? एनीबडी एल्स बिफोर वी वाइंड अप। सबसे पहले तो सर थैंक यू सर, आपने टाइम निकाल के हमारे सही लिए आए है। सर थैंक यू सबसे। सो मच सर। और सर एक चीज और कहना चाहूंगा कि सर ने कैसे ट्रेडिशनल वे में समझाया सबको, कि यानी शुरू में जो अपने ओल्ड फॉर्मूलाज होते थे, और अपने जो ओल्ड फॉर्मूलाज और अभी न्यू फॉर्मूलाज क्या क्या आए हैं, क्या चेंज हुए, सबसे अच्छा वी लुकअप का कंपैरिजन करके दिखाया सर ने, वो सबसे अच्छा लगा मेरे को। वी लुकअप का एक टेबल में क्या कंपैरिजन है, एक्स लुकअप का क्या कंपैरिजन है, सर ने वो दिखाया। दैट इज अमेजिंग, वो बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। ऐसे कई सर की तो चौपाल लगती है सर, तो क्या बताऊं सर, एक्सेल से लव करते हैं। वो तो कुछ दिख भी ही रहा करो, है। वो तो हंड्रेड एक्सेल परसेंट से तो कोई लव डाउट नहीं करते हैं है। सर। तो ये तो अपन को पता ही नहीं चला, 2 घंटे तो कैसे बीत गए, अपन को ही वही। कहना पड़ रहा है एक्चुअली। सर। अरे सर एक्चुअली। तो रात के 10 बज गए, नहीं तो सर को बोले ना तो अभी 11 12। हम्म। सर के अनलिमिटेड करवाते हैं सर, है ना। तो और एक्सेल की एवरी सैटरडे सर की चौपाल लगती है, चैम्प एक्सेल नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। हम्म। चौपाल लगती है फ्री में सर। कोई डाउट हो योगा उस पे, एक्सेल पे, तो अपने, है ना, सैटरडे को सॉल्व कर सकता है ना? ठीक है। सर की मैं चौपाल लगती बिल्कुल है। बिल्कुल। ये ठीक है जी, यूट्यूब लिंक थैंक यू। वगैरह, और जो एक्सेल शीट आपको दिया है, एक बार ग्रुप में भी दिया है मैंने, वो क्या करेंगे, उसमें सारा लिंक्स वगैरह है। और हाँ हाँ। सबसे बड़ी बात है सर, सबकी सबसे बड़ी बात ये, जो सर ने एक्सेल शीट शेयर की है, सही बताऊं तो सर अपने पेड सेशन में शेयर करते हैं। वेरी ग्रेट हाँ। सर, यू आर शेयरिंग दिस एक्सेल शीट इन दिस सेशन सर, वेरी थैंक यू सो मच। ये सच्ची में सर ने एक्सेल शीट जो शेयर करी है, इतने सारे जो इसमें टैब्स हैं, ये ऑलरेडी सर अपने यस। पेड सेशन एग्जैक्टली। में शेयर करते हैं सर। मैं क्या बताऊं सर, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। आपने इतना बड़ा सेशन किया 2 आवर्स का, बहुत सर ग्रेट है सर, थैंक यू सो मच फॉर। वी वेलकम आर वेलकम। स्पीचलेस सर। चलिए ठीक है जी फिर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर मोर कोलेबोरेशन विद योर लाइक टीम, और बाकी जो भी लोग जुड़े हैं उनके साथ में। सो ठीक है सर, ऐसे तो थैंक यू। मन तो नहीं है सर और 1 घंटा, लेकिन बस बहुत लेट हो चुका ऑलरेडी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, वापस देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग। अभी तो 50 भी नहीं हुए, 100 है सर।
डेफिनेटली। और एडवांस चीजें वापस हम लोग एक बार देखेंगे सर हाँ कॉल हाँ, पे। बहुत एक्सेल तो कभी खत्म ना होने वाली चीज है। हाँ हाँ, एक राइट। एक फॉर्मूले पे हम 2 घंटे लगा सकते हैं और सैकड़ों फॉर्मूले हैं। तो वो तो अगर हम सोचें 500 घंटे लगा लें तो भी खत्म नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो ठीक मच है वंस अगेन, सर, थैंक यू ओके, सो मच। वेलकम। रिकॉर्डिंग्स सबको मिल जाएंगी संडे तक, बाय संडे। ठीक है सर, गुड नाइट, गुड ओके, नाइट एवरीवन। थैंक यू सो थैंक यू, मच फॉर वेलकम, अटेंडिंग। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।